Good evening, everyone. Jai Hind. Jane, sir. Jain sir. Jane, Jai sir. Hind. Please keep your cameras on throughout the session so that we have an interactive class. And a few instructions that we will maintain the decorum and the civility throughout the session. And initially, I will, brief you about a few things. I will share my thoughts about how we can approach the essays and answer writing. What are the things that we have to work on? And towards the end of session, we will have a Q&A session. Okay. So if you have any doubts, you can keep it towards the end. And if some of your friends who have not been intimated, tell them that if they want to join, they can, join this session as well. So before we start the session, most of you are preparing for which examination? Can you give me a go? Can you tell me? Or maybe you can write in the comment section which exam you're preparing for. Most of you are for the Intelligence Bureau exam, I guess. All right. I can see the messages coming through. All right. And has any one of you written the Tier 2 examination before? Any one of you given yes or no? You can write yes or no so that I get an idea. Most of you are freshers, it seems, right? Okay. So the fair assessment that I can have from your responses is that most of us are writing our examination for this phase 2, where you will be supposed to write a subjective descriptive examination. So you don't have any experience, but actually you have an experience. This is not that you're writing a subjective exam for the first time. Ever since you were a small child, school mein aap pad rahe the, you were in school, in your college, you have been writing. So don't assume that you don't know how to write answers. You have been writing answers ever since you were in school. So you just have to extrapolate that idea to a next level. How we can, cater to the demands of a particular examination. Now, can anyone tell me? So let's, whenever I ask a question, I want participation from you. So you can raise your hand and I will take your name and then you can answer those questions. So can anyone tell me what is the need for answer writing in an examination? Why do they make you write essays in any competitive examination, be it civil services or it may be other examinations? तो essay लिखवाने का क्या objective है? What is the purpose? Why they make you write essays? So you can raise your hand and then you can answer. I want participation. Yes. Now you're not supposed to type in chat all of these things. I want you to say it loud and clear. I want participation from you guys. Yes, Bhavya, please go ahead. Can't hear you. Can't hear you. Sorry? So to check the mentality and thinking of the candidates, how they think, how they write. Okay, that's a fair answer. Anybody else? Yes, Greshma, you can go ahead. But to see how well we can structure our thoughts and present our ideas in a given time with limited words. Okay, good. Varda, you can go ahead. So they observing the presenting skills, sir. How you could present your thought in a answer.
Okay. So they want to check your articulation. That is what you said. They want you check your articulation. Grishma, what did you say? So how well we can structure our thoughts and Structuring your thoughts. What else? Anyone else wants to pitch in? Shailu wants to say something. Please, whoever is in the class, keep your cameras on. Otherwise, there is no point of this interactive session. Yes. प्लीज फील फ्री. देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं. आपने हेजिटेशन अपनी खत्म करनी है. डोंट हेजिटेट एंड डोंट टाइप इन द कमेंट्स आई वांट यू टू स्पीक इट लाउड एंड क्लियर. आप फिर जब फेज 2 के बाद आप बोलेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी अलग से कराओ, तो इंटरव्यू की तैयारी आपकी फेज 2 के बाद नहीं शुरू होती, और ऐसे राइटिंग की तैयारी अभी नहीं शुरू हो रही है, ये आपकी काफी देर पहले से शुरू हो चुकी है. सो यू स्टॉप दिस मेंटालिटी ऑफ स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन व्हेन द डेट्स आर अनाउंस्ड. So your personality has to be groomed gradually over a period of time. And the first step towards that is shunning off your fears. इधर हम 20-25 लोग हैं, जितने भी 30, I think around 30 people are there in the session. So if we can't have the confidence to speak here, how will we perform when we go into the actual job scenario? वहाँ पे you will be dealing with hundreds of thousands of people. You'll be dealing with crowds, managing them. How are you able to do that? So my idea to make you speak is also to make you understand that shun your fears. Okay, yeah, Anjali wants to say something. Yes, sir. Sir, how well we are able to understand and interconnect various topics and present it? Interconnections. Interconnections as well as understanding of the topic. Okay, fair thought. Yes, anyone else? Anyone else is that? Yes, Bhavya, आप बोल चुके हैं. Intellectual युवा, yeah, please go ahead. So basically, to understand what is the perspective of a particular candidate about the question and how they see the problem and what solutions they can provide for the particular problem. Very, very, very important and very good. Solution oriented approach. That is the most important thing, because they want you how to resolve the problems that you will be dealing with the actual job scenario. Yeah. और कोई? Yes, sir. Okay. To evaluate the Tell your- students' high order thinking skills. Sorry, please tell And your how- name before answering. Please tell Sir, your name before. myself Salendra, sir, and I'm not Okay. able to switch on my camera. That's why my video is not available. And Okay, no worries. it is so essay writing is necessary for getting the students high level order thinking skills, and how they construct their argument and justify their position with evidence. Okay. Sir, So to argumentation. Okay. Yes. may I, sir? Yeah, please go ahead. Sir, my name is Griffin. To check intellectual depth in time-bound manner. Intellectual depth. Very good. Okay. So we have a fair idea now. The idea for this exercise was to make you first understand why we are writing essays. हम ऐसे लिख क्यों रहे हैं? ठीक है. आप प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, या बाकी एग्जामिनेशंस आप देते हैं, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, सीएपीएफ हो गया, तो यू राइट ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन. ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में यू हैव टू रिकॉल, यू हैव टू आइडेंटिफाई अ फ्यू थिंग्स, बट द नीड फॉर बोथ, आई वुड से, essay writing is basically, it is basically a conversation. It is basically a conversation. Treat it like a conversation and not as a bland argument. It is a conversation that you make with the examiner. They want to see into your mind. They want to get inside your head. What is your cerebral framework? How you, like you mentioned all these points, your articulation, your structuring of the ideas, how you interconnect various topics. You may have an understanding of the air quality index, the problems with respect to pollution, but are you able to relate with the law and order problems? Or are you able to link various internal security threats that country is facing? Are you able to manage those connections
or are you simply get phased by such scenarios? है ना, आपका perspective क्या है? Knowledge and perspective are two different things. Knowledge and wisdom are two totally different things. I keep quoting this example that knowledge is knowing that tomato is a fruit, and wisdom is not putting it in the fruit salad. So you have to know where to speak what. If you are sitting in an interview board, your every word, every argument, every articulation should be immaculate. One thing also you must understand, that before you start preparing, or you do any preparation, one thing you must bear in your mind, that we do not become an officer after qualifying the exam. So if we don't become an officer after qualifying the exam, then when do we become an officer? Can anyone answer this question? Would anyone like to answer this question? अगर हम एग्जाम क्वालिफाई करके ऑफिसर नहीं बनते हैं, तो हम कब बनते हैं ऑफिसर? Yes. We have the Kashish was- mindset of an officer. Sorry, please tell your name, because it is difficult to identify who is speaking for me. Sir, myself, Sailendra. We become the officer as and when we start thinking and we start acting like an officer. Okay, good thought. Kashish, you want to say something? Sir, during the process itself, while we are preparing for it. Very good, very good. So we don't become, I keep quoting this idea all the time, that we don't become something after the results. Results is just like that small validation that society gives you or the examination system gives you. But you chisel yourself into an officer throughout the process. तो ये अगर आप ये सोचते हो, जैसे ऐसे लिखना है या कुछ भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप एक बेगिंग बोल लेके जाते हो ना एग्जामिनेशन हॉल में, यू आर नॉट गोइंग टू डू वेल. बाय बेगिंग बोल आई मीन यू डोंट ट्रस्ट योर एबिलिटीज इनफ. आप अपनी एबिलिटीज को ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो. यू गो टू 10 पीपल सीकिंग एडवाइसेस हाउ टू गो अबाउट इट, क्या करना है क्या नहीं करना है. तो दैट स्टडी करना आप सब करते आए हैं बचपन से, और इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग. स्टडी करना, किताब खोल के पढ़ना है, ठीक है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. पर अपने आप में जो बिलीव करना, अपनी थॉट प्रोसेस को रिफाइन करना, वो आपके आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट होता है. जब आप इंटरव्यू में रूम में जाते हो, द वे यू आंसर योर क्वेश्चंस, that reflects. Now, for example, we are having these conversations. Not many of you were able to speak. Some of you are not able to come on camera, maybe because of lack of confidence or maybe other reasons. So these are the little things मैं जो बताता हूँ सबको, कि कॉन्फिडेंस और इनिशिएटिव ये आपकी सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए. आपको दौड़ के आगे आना चाहिए, आपको घसीट के आगे लाना नहीं पड़ना चाहिए. ये आप सोचते हो कि नहीं मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, मेरे घर में तैयारी कर लूंगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है. आपको जिस जगह पे आप हो, जिस वक्त आप वहां पे हो, यू शुड बी 100% फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स दैट एग्जिस्ट्स. उस वक्त में आप वहां होने चाहिए और आपको उस मोमेंट में वहां अपना बेस्ट देना है. अगर आप अभी इस क्लास में हो, आप राइट नाउ आई एम स्पीकिंग टू यू, so I can't be thinking about other things. I have to be 100% here. So if you learn the art of being present in the now, then you forget about कि मुझे एग्जाम क्लियर करके ऑफिसर बनना है. So we do not become an officer after qualifying. We first chisel ourselves into an officer. That is something very important. And the examination process is, what is that? That is simply, a byproduct. The result is the byproduct. So, extrapolating this argument, you want to write, now your target is to write good essays, to improve your answer writing. Now, what is the chiseling part? Chiseling part is doing what is required to be done. ठीक है, क्या करना है हमें अच्छा ऐसे लिखने के लिए. Now, another question I want to ask now. What is your assessment of a good essay? Again, I don't want to take out names कि आप खुद से initiative लेके hand raise करेंगे, अपना नाम बोलेंगे, then I tell you to speak. So, what is required to write a good essay? I want to hear from you first.
Yes. depth idea of the topic and arguments of the topic. What are the pros and what are the cons of the topic? And if we can evaluate the situation with the recent incidents or past incidences, that can be make our essay very good. देखिए, आपने पहले तो मेरे सवाल को ध्यान से नहीं सुना. अगर आप इंटरव्यू में होंगे, someone will subtract your marks. I told, first take your name, then answer the question. So follow basic instructions. Attentiveness and listening is the first art of a good communication. So some people were asking, sir, will you train us for the interview? Interview training is not different. Interview training is integral part of our everyday life. When your parents call you, your friends call you, we jump to answer. We don't listen. First listen, process, and then articulate. So follow the basic protocol. कई बार इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, tell these 5 things. So you have to be attentive. दूसरी बार नहीं पूछना है सर को कि सर आपने क्या पूछा था, वो 5 चीजें क्या थी. That is what they're testing, and you're joining an intelligence organization. So they want to test how much you are grasping. Are you able to do that? Or you're simply, अच्छा sir क्या बोला था? Sorry sir, pardon sir. The game is gone. So even though whatever you said, I stopped listening, even when you didn't introduce yourself. Okay, now you get chance in the last. Okay, Griffin wants to say, yeah, please go ahead. Good evening, everyone. I'm Griffin. It is a good essay consists of the original, with the blend of originality and data and facts and a perfect framing, close to perfect. Close to perfect framing. So you are saying that a good essay should be a perfect essay. Perfect framing. Okay. What else you said? और क्या बोला आपने? Sir, original thoughts and creativity. Original thoughts. इतनी देर में मैं लिख रहा हूँ, बाकी अपने थॉट्स आर्टिकुलेट करके बी रेडी नेक्स्ट कैंडिडेट. Original thoughts, creativity. Yes. Who else wants to go? Yeah, please go ahead. Be brief. Keep your answer, suggestions very brief. Yes, Bhavya. To have a balanced approach and argument, not extreme right and not extreme left. Okay. Yeah, Shubham. Yes, sir. So basically, we should have a surround awareness of what's going on, and after that, we should be non-biased towards the topic, and we should put our facts in a way so that it doesn't deviate from the topic or know So any. you should tether your essay to the topic. Yeah. Tether to the topic. Keep it precise. Okay, good. I think intellectual you are. So first is to understand the question, and second is to describe the current situation related to the topic. Then what were the reasons or drivers behind it, and then what the government has initiated for it, and at the end what other suggestions or solutions we can provide. Very good. That's a very structured way to approach. Neha, go ahead. Sir, simple and a good language, along with concise and precise point that the invigilator will understand your points and thoughts. Language should be precise. What Yes, else? sir. What else? Okay. Grishma, you can go ahead. Sir, there must be an emotional touch to the essay with a natural flow that the examiner can connect instantly. Okay. And natural flow. Very good. और बताइए, और कौन रह गया? कशिश? Good evening, everyone. This is Kashish. So, there should be a good structure in the essay, and it should be a holistic one, which should show the social, political, economic, and international as well dimension. So, it Okay. should be a holistic one. It should be multidimensional. Yeah. It should be multidimensional. Okay.
Anyone else wants to? We'll take one more response. Anyone wants to share insights? Yes, Shailendra was left. Shailendra, now you can go ahead. Thank you, sir. In my view, a good essay should have in-depth knowledge of the topic, balanced approach, linking of facts and quotes. We should provide, if there is a problem, we should provide the solution. If there is a solution, we should have pros and cons of that one, and we should have multi-directional approach. Okay, so most of you have covered all the decent points, and essays, all of these things put together. ऐसे से क्या होता है, सिंपल आपने ये समझना है, कोई भी टॉपिक आपके सामने जब आता है, आपने ये समझना है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए उसको। पहले तो आप बेसिक प्रमाइस होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रमाइस ऑफ द एसे। व्हाट इज द बेसिक प्रमाइस? So your opening statement, your opening argument in the essay must hinge itself to the basic premise. You should hit the bullseye. So hit the ground running right from the beginning. Don't deviate here and there. That should let the examiner know that the candidate knows the nitty-gritties of the topic and the approach is good. Now see, essay में दो चीजें होती हैं, सबसे important part. There are two components of a good essay. Two components of a good essay or a good answer. How you write a good essay. तो इसका फर्स्ट आपका कंपोनेंट होता है आपका कंटेंट। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज द कंटेंट, कि आपका नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में। दूसरा होता है आपकी प्रेजेंटेशन। सेकेंड पार्ट इज द प्रेजेंटेशन। नाउ आई हैव सीन लॉट ऑफ कैंडिडेट्स who have a very good knowledge base but their presentation is not really good. ठीक है, अब गुड प्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्या आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर लैंग्वेज। इट मीन्स, सिंस पीपल से दैट सर मेरी हिंदी इंग्लिश अच्छी नहीं है या खराब है, नाउ सी दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस। आई डोंट बाय इनटू दिस आर्गुमेंट कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो काम करो, वर्क 24/7, 365 days in a year, काम करना है। तो लैंग्वेज आपका इंग्लिश पे कमांड हैज टू बी गुड। योर कमांड ओवर इंग्लिश हैज टू बी गुड। You don't need to write Victorian Oxfordian English, but you just can articulate your sentences without mistakes. It should be impressive as well. Secondly, your expression needs to be simple. Expression has to be discernible. It should be discernible. It should not be too flowery. It should not be too flowery. Not too flowery. Or too bland. Strike a balance. बिल्कुल भी देखिए, खाने में बिल्कुल नमक नहीं डालेंगे आप, मजा नहीं आएगा। बहुत ज्यादा नमक डाल देंगे तब भी मजा नहीं आएगा। तो देयर इज ऑलवेज, यू हैव टू फॉलो व्हाट? बुद्धा's मध्यम मार्ग, Aristotle's golden mean. Aristotle's golden mean you have to follow. Now this you can quote in your essay also. So whenever you have to synthesize, reconcile two opposing things, कई बार आपके पास ऐसे में या आर्गुमेंट देना पड़ेगा कि ये दो एक्सट्रीम्स हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें आप ये भी आर्गुमेंट दे सकते हैं कि we need not go for the extremes, but we should rather reconcile the two extremes as per Aristotle's golden mean or Buddha's madhyam marg. ठीक है, तो ये आपका बेसिक पैराडाइम होना चाहिए। उससे इंपॉर्टेंट चीज, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। इट इज क्रिमिनल, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ग्रामर आपकी ऑन पॉइंट होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे एक ऐसी चीज है जो एक आपको आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट भी है। इट इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर एक्सप्रेशन बट लैंग्वेज ऑफ योर नॉलेज, टेस्ट ऑफ योर लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज पे कमांड कितना है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे गलतियां करते हैं, हर लाइन में कटिंग करते हैं। आई मेड श्योर व्हेनेवर आई राइट एसेज, आई मेक श्योर आई डू 0 कटिंग्स।
कोशिश यही होती थी मेरी, कभी हो जाए ये आपने प्रैक्टिस से रिमूव करना है। पर्टिकुलरली ये इंश्योर करना है कि पहले पेज में दूसरे पेज में तो बिल्कुल ना हो, नो कटिंग्स, स्पेशली फर्स्ट 1-2 पेजेस। कटिंग्स करनी ही नहीं है आपने, कटिंग्स करेंगे तो वो एक बड़ा ही गंदा सा उसमें इंप्रेशन पड़ता है। तो आपने कॉन्शियस एफर्ट करना है, यू हैव टू अवॉइड एनी कटिंग्स। ठीक है, पूरे अपने ऐसे में ऐसे ये आपका पैराडाइम होना चाहिए। अच्छा, अब ऐसे जब लिखेंगे आप, तो ये आपकी A4 शीट होती है, दिस इज योर A4 शीट। तो यू हैव टू एटलीस्ट लिमिट योर, so how to structure page wise, how to structure the essay, just a moment, yeah, how to structure in a page, कैसे लिखना है। तो सबसे पहली चीज, limit it to 70 to 80 words per page, that is a thumb rule, 70 to 80 words per page। और आपने कोशिश क्या करनी है, you have to write only 2 paragraphs in a page, only 2 paragraphs, and both the paragraphs should end in that same page only। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहां से शुरू किया, एक पैराग्राफ यहां खत्म हो गया, you leave a space between 2 paragraphs, then you leave spacing, I'm telling you the semantics of how to fetch marks also, leave spacing between 2 paragraphs, ठीक है, small spacing, so they should be easily identifiable, then you start writing the next paragraph, the next paragraph should end here. So within that one page, you should articulate your idea, mostly one idea per paragraph. You should keep one idea per paragraph, and in every paragraph, in every paragraph, in every para, try to link it to the topic. This could be in the first line, ये आप क्या कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, एटलीस्ट जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें कुछ रेफरेंस दे देना उसका, और लास्ट लाइन of that paragraph should be linked to the topic. But also make sure one thing, एक और चीज का ध्यान रखना है, this should not be too mechanical, don't make it too mechanical. It should flow seamlessly, make it flow seamlessly, ठीक है। Now in UPSC essay आपका 125 मार्क्स का ऐसे होता है यूपीएससी में, ठीक है। There you have to write around 1500 words, maybe around 1200 words. That essay could be 7 to 8 pages or something like that, 80 pages, 80 words per page, or 7 to 8 pages. In your IB essay, you will have to write around 25 maybe marks, 25 marks का आपका essay है. But here also you have to write around 5 to 600 words. If possible, 4 to 500 also. Around 500 words should be your approach. So you should limit it in 3 to 5 pages. Your essay should be finished in 3 to 5 pages. And try to make sure that every paragraph, first paragraph to the second paragraph to third paragraph, इंट्रोडक्शन शुड बी, अब इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे ऐसे को, हाउ डू यू इंट्रोड्यूस ऐसे, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आर द की। जब आप खाना खाना शुरू करते हो, ठीक है, द फर्स्ट बाइट दैट यू टेक दैट शुड बी टेस्टी, ठीक है, बट जब आप लास्ट खाना खा के स्वीट डिश लेते हो, दैट स्वीट डिश शुड ऑल्सो बी, इट शुड लीव अ गुड टेस्ट इन योर माउथ, सो दैट हाँ मजा आया। सिमिलरली जब एग्जामिनर आपका ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे तो उनको एक हुक लगनी चाहिए, he should be hooked to reading your essay, it should generate an interest. So introduction should generate an interest in the examiner to read the complete essay. This is very, very important.
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि आपने इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया लिख दिया लेकिन आपने उसको फॉलो अप नहीं किया। कहते हैं जब हम एक्सपेक्टेशंस हाई रेज कर देते हैं फिर हम उतना परफॉर्म भी नहीं करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो डिसअपॉइंटमेंट, यू विल लूज मार्क्स ड्रास्टिकली, फिर आपको बहुत खराब नंबर मिलेंगे। तो आपने एक टेम्पो मेंटेन रखना है थ्रू आउट योर ऐसे, आपने पूरे अपने ऐसे में एक टेम्पो मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल। तो अब इंट्रोडक्शन आप कैसे कैसे कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका है, मैक्सिमम लोग करते हैं, कोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं। पीपल ट्राई टू यूज कोटेशंस इन देयर इंट्रोडक्शन, but there is a catch here. Quotations must be very tightly hinged to the topic, very tightly hinged. तो कोटेशंस आपकी उसके पूरे, ऐसा नहीं है कि हम कोई रट के आए हैं कोटेशन और हमें लग रहा है नहीं इसको यार चिपका देना यहाँ पे, वो चिपकाना नहीं है वहां पे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जबरदस्ती का एकदम से वो कट एंड पेस्ट वाला काम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कंप्लीटली, इट शुड ब्रिंग आउट द इमोशन so that the argument that you're building after that quotation is very good. I have, maybe I have told in a video earlier also, in one of my UPSC essays where I scored 143 plus marks, वहां पे एक वुमेन पे एक ऐसे था, तो मैंने उसको एक कोटेशन से इस्तेमाल किया था, शुरू किया था। टॉपिक था न्यू वुमेन पे, द फुलफिलमेंट ऑफ अ न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ myth. So I started it this with a quotation that when the entire world is silent, even one voice makes a difference. ये किसकी स्टेटमेंट है, किसी को पता है? Who is this lady? Malala? Activist from Pakistan. अगर मैं आपको पूछूं कि who are you, you will tell I am from India. Tell about her ना, first tell about her. That is where you're not listening to the questions. किसने आंसर दिया इसका? शुभम सर। शुभम, आपने आंसर क्वेश्चन नहीं सुनते हो ना। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा? हु इज मलाला? शी इज फ्रॉम पाकिस्तान। इज दैट द करेक्ट आंसर? टेल मी। No, sir. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट योरसेल्फ। A human activist from Pakistan who like That's a better answer, even though that's not completely correct. works Correct, please. against terrorism. She fought against terrorism. Sorry, sir. Education, women education. ठीक है, थोड़ा रिफाइन कर रहे हैं अपनी आर्गुमेंट को, कोई बात नहीं, गुड अटेम्प्ट। हाँ कवित, प्लीज गो अहेड। Yes, Kavit, can you hear me? Yes. Sir, she is the youngest recipient of Nobel Prize. Youngest recipient of Nobel. Which Nobel Prize? Sir, I am not clear about it. The Nobel Peace Prize. She is a Nobel Peace Prize awardee, Nobel laureate. Griffin, you want to add something to that? Yes, sir. She is a Pakistani teacher who raised her voice against the government for not against the system for the children, the women and the children were not being educated, and she was shot by terrorists for by bullets, but still she persisted, and for that she was awarded Nobel Peace Prize. Yeah, to an extent you're right. So basically she was a education rights crusader for girls. So this is, see, आपको ना आपके वर्ड, दो वर्ड बोलोगे आपको सब कुछ पता, एग्जामिनर को पता चल जाना चाहिए. So if somebody asks you in the interview who is Malala Yousafzai, you can simply very briefly, she is a education rights activist crusader in from Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan, who was awarded Nobel Peace Prize for her exemplary work for restoring the dignity of women in South Asia. That summarizes it beautifully. That is how you should answer. इस तरह से आपकी arguments frame होनी चाहिए. First, for that you need to have an understanding. If you're not too clear, you can ask the interviewing panel that, sir, I'm not exactly sure, but if you allow me, I will hazard a guess. So that's how it happens. This is how you have to build out your arguments. Now coming back to this question itself. Now this statement, when the entire world is silent, even one voice makes a difference. Now, Malala Yousafzai ने क्या कहा है?
कि जब पूरी दुनिया शांत बैठी है, सब लोग चुप हैं, एक आवाज जो राइट्स के लिए या जस्टिस के लिए उठाई जाती है, वो भी दुनिया बदलने का दम रखती है। अब इस स्टेटमेंट को हम वुमेन वाले ऐसे से कैसे कनेक्ट करेंगे? सो आई वेंट ऑन टू एक्सप्लेन हाउ दिस इमोशन, दिस सेंटिमेंट, दिस स्टेटमेंट explains the sentiment of not just Malala Yousafzai, a girl from Pakistan, but the sentiment of women not just in South Asia but in the wider neighborhood and across the globe. How we need to, reshape the gender justice regime, how we need to take the gender rights regime forward, how we want to take it. See, कोर्ट सिर्फ लिख देने से कुछ नहीं होगा, आपको, आर यू एबल टू कनेक्ट इट, आर यू एबल टू टच द इमोशनल नर्व ऑफ द एग्जामिनर, आर यू एबल टू enthuse the examiner? That is the catch, that is what will create a difference. So quotations आप selectively कुछ topics पे आपको prepare करनी चाहिए, at least I would say around, pick some 20 quotations, and they should not be very irrelevant, and I don't want you to cram it. I want you to internalize it, because unless you internalize, you won't be able to build a perfect argument around that. Now, quotation is one way to build start the introduction. Another way is to use an anecdote. कोई आपको historical anecdote का इस्तेमाल कर सकते हैं आप. What kind of anecdotes can be used from history? For example, in one of the essays, I started with the anecdote from Hiroshima and Nagasaki. The Hiroshima and Nagasaki anecdote. Can anyone tell me about Hiroshima and Nagasaki? Anyone? Where are these cities located? Yes, Sachin, you can go ahead. Good afternoon. Good evening, sir. Good evening. So, these two cities are located in Japan. They were bombed by USA in the First World War. Can you tell me the exact dates? Anyone? Sir, I'm not exactly aware about the dates, but these were in August month. Sir, myself, Shailendra Negi. Yes. Hiroshima was bombarded on 6th of August with little boy, and Nagasaki was bombarded on 9th of August by USA. The bomb name was Fat Man. Very good. So they were bombed in 6th and 9th August 1945. So ये कुछ चीजें आपको कहीं से कोई बताएगा नहीं, ये आपको आपकी नॉलेज ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गैदर करते हो, ठीक है ना? वेदर यू आर रीडिंग हिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आप न्यूज भी जो सुनते हो, ट्राई टू बिल्ड दैट पर्सपेक्टिव. अब हिरोशिमा और नागासाकी वर बॉम्ब्ड बाय द अमेरिकंस, सो द एंटायर सिटीज वर बरीड अंडर द रबल, है ना? व्हेन द टू सिटीज, सो हाउ आई स्टार्टेड इट, it is the summer of 1945. The twin cities of Hiroshima and Nagasaki, they are bombed and razed to the ground, and they are lying buried under a pile of debris, isn't it? But when the world thought that these cities would never rise, they are now done and dusted forever. But that's where I brought in the statement. But the Japanese, they thought otherwise. The world thought that they are done and dusted, but the Japanese, they thought otherwise. And through the sheer dint of their courage, hard work, and determination, they rose. In 20 years, they rebuilt their nation, and Japan went on to become one of the most industrialized countries of Asia. It is one of the leading countries. Japan has been at the helm of affairs. तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता है, सबको पता है, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना हमने, कि इस तरह इसको इस टॉपिक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कि कैसे जीवन में हार जाना ही सब कुछ नहीं होता. व्हेन यू लूज, कम बैक के ऊपर आप बना सकते हो, या इंडिया की ट्रेजेक्टरी के ऊपर, कि इंडिया को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो क्या इसमें हम राइज कर सकते हैं. यू कैन राइट ऑन दैट हाउ यू कैन ब्रिंग फ्रॉम द जापानीज एनेक्डोट. यस, इफ दे कैन डू इट, व्हाई कांट वी? समझ रहे आप कैसे चीजों को रिलेट करना है.
एक और एनेक्डोट है जो न्यूटन, सबको पता है कि क्या एनेक्डोट है न्यूटन का? हाउ वाज ग्रेविटी डिस्कवर्ड? हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, राइट? तो कैसे डिस्कवर किए थे उन्होंने ग्रेविटी को? हाउ डिड ही डिस्कवर? यस, प्लीज गो अहेड. Good evening, sir. When apple fell on his head, he was sitting under an apple tree. ओके, हु एल्स? कोई और बता रहा था? Oh yes, sir. Sir, he was sitting in the garden and then apple fell over his head. So he thought that why this apple fell like in the ground only? Why didn't it go up? So from there he discovered that the earth has a gravitational pull which attracted toward its center. ओके, वंडरफुल. बट क्या उससे पहले कभी एप्पल पेड़ से नहीं गिरा होगा? कभी एप्पल नहीं गिरा होगा उससे पहले, जब तक न्यूटन ने नहीं देखा एप्पल को गिरते हुए? गिरा होगा. गिरा होगा. फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि न्यूटन ने देखा कि एप्पल से उसने ग्रेविटेशन निकाल ली? क्यूरियोसिटी. Very good. Curiosity and the genius. Absolutely. So how I use this in one of my essays is essay on creativity पे कुछ ऐसे था. वहां पे I wrote this statement. You can verbatim copy paste it. I simply wrote that apples had been falling from the trees. और ये मैं एग्जाम हॉल के बीच में बैठा हूं, और ये जो हिरोशिमा नागासाकी वाला है, ये मैंने एग्जाम हॉल में बैठ के और इमेजिनेशन बनाई थी. ये बाहर तैयार करके नहीं गया था मैं. Sitting in the examination hall, these ideas came to my mind. So for that you have to think how imaginative you can be. ये न्यूटन वाला आइडिया भी एग्जाम हॉल के बीच में ही आया था मुझे कि apples had been falling from the trees since times immemorial. ठीक है, apples had been falling from the trees, but it was the genius of Sir Isaac Newton who saw in it the gravitation and gave to the world, you can articulate it henceforth, who saw in it the magic and henceforth gave to the world the law of gravitation. So how you see things around you, उनको आप perspective में कैसे आप fit कर सकते हो? Got it? This is how you have to keep your eyes and ears open. Eyes and ears open. You have to be observant. You have to be objective. You have to be imaginative. You have to be very, very imaginative. Because essay calls for a flight of imagination. सिर्फ वो verbatim, that is why I encourage all of you not to cram things. याद करना अलग चीज होती है, but बिना समझे रट्टा मारना, that is, recipe for disaster. So it is always advisable to understand things and then it should flow from your heart. It is something that you should flow. It should flow like water, rivers, like for example, rivers had been cutting through rocks ever since, not merely by their, their huge mass, but by their persistence. That also you can use somewhere, कि how rivers cut through rocks through their persistence. That you can use in an essay, on a philosophical essay में आप use कर सकते हो. ठीक है ना? And आप उनकी बात कर सकते हो. राजनारायण केस था जो इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने वो जो केस किया था, फिर जस्टिस ने जजमेंट दी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में. That is a historical anecdote. How you can talk about, at the stroke of midnight hour, आप टेस्ट विद डेस्टिनी के स्पीच को कहीं कोट कर सकते हो. You can quote the टेस्ट विद डेस्टिनी. What is the टेस्ट विद डेस्टिनी स्पीच? किसने दी थी ये? Who gave the speech? Pandit Jawaharlal Nehru. है ना? Rarely a moment comes in history when, the world, at the stroke of midnight hour and the world sleeps, India wakes to light and freedom. Isn't it? So these are the things that how आपको उसको ओपन रखना है माइंड को. अब महात्मा गांधी का इतना रेलिवेंट एग्जांपल आप दे सकते हो. A man clad in a dhoti gave up even his clothes. A man who was educated in the best of institutions. How he galvanized the entire nation and woke up
woke them up from the slumber and gave to them the confidence that they can depose mighty foreign rule. एक बॉस्टन टी पार्टी का एग्जांपल आप दे सकते हो. यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ anyone is aware of Boston Tea Party? बॉस्टन कहाँ पे है इतना तो बता दो. Yes, sir. Sorry? So myself, Salendra, Boston is in USA. यूनाइटेड स्टेट्स. ओके. हर बार आपको शैलेंद्र नहीं बोलने की जरूरत है, वो हाईलाइट इसलिए किया था because at that time I asked. It's no need to bother about that. The idea is only to make that sometimes when I ask, I want to make sure that your attentiveness is also there for all of you. This is for all of your benefit. ठीक है ना? Okay, so Boston is in United States. Anybody knows about Boston Tea Party? Internet पे check मत कीजिए कोई भी. Without checking on the internet, if you know, you know. Otherwise, don't tell. Anyone knows about Boston Tea Party? No. Okay. So Boston Tea Party क्या होता? पूरी एक ship भरी हुई चाय की. As an opposition to the British colonialism, it was dumped into the sea. It was symbolic. Now Mahatma Gandhi was such a great man. He had a great vision. So he used that idea in India. Can anyone tell me what is the Indian Boston Tea Party? What is the Indian version of Boston Tea Party? Now you can have an idea. Dandi March, the Salt Satyagrah. Salt Satyagrah or the Dandi March is the Indian version. It is the Indian version of the Boston Tea Party, and with a handful of salt. With a handful of salt, Mahatma Gandhi had shaken the foundations of the mighty British Empire. This you can definitely use. ये ऐसा नहीं है आप सबको पता नहीं है. हाँ, बॉस्टन टी पार्टी के बारे में आपको पता नहीं हो सकता है, बट ऐसे एनेक्डोट्स आपको भी बहुत सारे पता हैं. आपको अपने आंख नाक कान सब खोल के रखना है. न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वहां पे हैव एन आई फॉर डिटेल. कैन आई यूज दिस इन एसे? कैन आई यूज इन वन ऑफ माई आंसर्स? नाउ यू हैव दिस बुद्धिज्म का एक बड़ा ही कॉन्सेप्ट है क्षणिकवाद का. इन बुद्धिज्म there is this concept of Shanikvad. This means this is a theory of momentariness of reality. Theory of momentariness of reality. तो ये आप philosophical angle दे सकते हो अपने ऐसे में. You can give this philosophical angle where you talk about the impermanence. This talks about how the world is impermanent. Impermanence of reality. आप इसको किस तरह से अपने ऐसे में यूज करोगे, ये आपकी विजडम पे डिपेंड करता है. देन देयर इज अनदर थ्योरी ऑफ जैनिज्म. जैनिज्म की थ्योरी ऑफ अनेकांतवाद. अनेकांतवाद ऑफ जैनिज्म. ये क्या कहता है कि देयर इज अ मैनीनेस ऑफ रियलिटी. मैनीनेस ऑफ रियलिटी. मैनीनेस ऑफ beg your pardon, मैनीनेस ऑफ रियलिटी, where they give the example of elephant and flying 5 blind men. 5 blind men. तो इसमें क्या होता है अनिकांतवाद की थ्योरी में? वो एग्जाम्पल क्या देते हैं कि 5 अंधे लोग होंगे अगर, इफ दे टच एन एलिफेंट, दे वुड ओनली इफ दे टच इट्स ट्रंक, तो वो सोचेंगे ये कोई पेड़ का तना है. उसकी पूंछ को टच करेंगे तो लगेगा ये इसकी कोई रोप है, रस्सी है. उसके पूरे उसके पेट को टच करेंगे कोई दीवार है.
सो बेसिकली वो सब सही है, लेकिन दैट इज नॉट द कंप्लीट रियलिटी, इजंट इट? दैट इज नॉट द एंटायरिटी ऑफ रियलिटी. सो आप इसको अपने आंसर में ऐसे कोट कर सकते हो कि when a country is going through a state of crisis or metamorphosis or a transition, it is very imperative for the civil society, for the policymakers, and for the people who are at the helm, how they, or how as a society we should not make our opinions based on what appears at the face value, because जो हमें दिखता है, that is a just part of a reality. what we see what we see what we see is not what we see is not the reality, but a part of it. ठीक है? तो that way the examiner will know that this guy understands, but he has a philosophical understanding also. अब एक और वेस्टर्न फिलोसोफर को हम यहाँ कोट करेंगे. हाउ वी कैन कोट अ वेस्टर्न फिलोसोफर आल्सो. अब दो अपोजिंग व्यूज को रिकंसाइल कैसे करना है? टू रिकंसाइल टू अपोजिंग व्यूज. तो इसके लिए बड़े ही महान एक वेस्टर्न फिलोसोफर है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, who gave the idea of how we can reconcile. The name of the philosopher is Immanuel Kant. Immanuel Kant कहता है, he reconciled the ideas of rationalism and empiricism. Now this gentleman, he reconciled rationalism, अब बताता हूँ rationalism क्या होता है, and empiricism. Rationalism क्या कहता है? अब just a moment, I'll have some water. अब रैशनलिज्म क्या कहता है? देखो, नॉलेज, इससे पहले आपको नॉलेज समझना पड़ेगा कि नॉलेज क्या होती है. नॉलेज किस चीज से बनती है? दो चीजों से बनती है नॉलेज. सॉरी, रीजन एंड एक्सपीरियंस. नॉलेज बनती है दो चीजों से, रीजन से और एक्सपीरियंस से. ठीक है? अब रैशनलिज्म का किस पे बेस्ड है? रीजन, और ये है एक्सपीरियंस पे. कुछ फिलोसफर्स कहते थे कि नॉलेज सिर्फ रीजन से बनती है, कुछ कहते हैं एक्सपीरियंस से बनती है. नो, दिस जेंटलमैन रिकंसाइल्ड बोथ दीज क्लेम्स. इसी तरह से हमारे वर्ल्ड व्यू में देयर कैन बी अपोजिंग क्लेम्स, तो वहां पे आप रैशनलिज्म के इस कॉन्सेप्ट को यूज करके you can reconcile the opposing claims and say that, like Immanuel Kant, he reconciled how we can reconcile, two opposing views. It is only imperative to understand that we should try to evolve at a best way to manage conflict management. This can help in conflict management. All right. ठीक है, एक और अब आप वेदांत फिलॉसफी से भी, अद्वैत वेदांता है, उसमें आदि शंकराचार्य, शंकरा, talks about how that world is a mere illusion, है ना, and we are not different from Brahma. So he quotes how there is very popular statement that identifies with the entire Vedanta philosophy, that is, Brahm Satyam, Jagat Mithya, Jivo Brahmev Napara, which means Brahm, or that's the ultimate reality. ठीक है? Jagat, which means the world that we see. Jagat is the world that we see, that is, kind of conditioned by illusion. So you have to understand that Brahm, this is the ultimate reality. Jagat is the world. Jagat is a world that is illusioned by Maya or cosmic nuisance. ठीक है? और जीवो ब्रह्मेव नापरा. Jivo means we are non-different. Human beings, we individuals are
non-different from Brahm. So suffice to say, you should only understand this thing, that how we can use these philosophical ideas in our essays. तो आपने इसका क्रक्स कहीं पे आप कोट कर सकते हैं, तो ये आपको एक बेहतर एक एज दे सकता है, वो 1 से 2 नंबर का एज मिलेगा हर क्वेश्चन में, तो आप आगे बढ़ सकते हैं उसमें. दिस इज हाउ यू नीड टू आर्टिकुलेट. सो दीज आर फ्यू वेज. पहले हमने कोटेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, एनेक्डोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, फिलोसफीज इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड योर इंट्रोडक्शंस. फिर बॉडी में आपने, जैसे अगर आप ऐसे लिखते हो तो यू कैन कोट फ्यू 7 to 8 पैराग्राफ्स में, 7 to 8 to 10 पैराग्राफ्स में आप अपने आइडियाज को आर्टिकुलेट करो. उसमें आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो बॉडी में टू स्ट्रेंथन योर आर्गुमेंट. मेन बॉडी में you can give data, you can use data, for example Oxfam data and reports, like Oxfam की रिपोर्ट इस्तेमाल करें आप, यूएन की कुछ रिपोर्ट्स कोट कर सकते हैं, इंटरनेशनल पैनल ऑन इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी रिपोर्ट काउंट कर सकते हैं, यूएनईपी की रिपोर्ट आप दे सकते हैं, यूएनएफ ट्रिपल सी इसकी रिपोर्ट दे सकते हैं, जो भी एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी आपके पास जो अवेलेबल डेटा है उसको आप कोट कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स को आप कोट कर सकते हैं. यू कैन कोट अ फ्यू एक्सपर्ट्स लाइक डॉक्टर सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन. एनीवन कैन टेल मी हु इज डॉक्टर सेन? एनीवन? डॉक्टर अमर्त्य सेन. He's a Nobel laureate who has given the concept of capability approach. Very good. So India's Nobel laureate in economics who gave the idea of capacity building or capability approach. ठीक है, तो इनका आइडिया क्या था, डॉक्टर सेन का आइडिया क्या था? हाउ वी नीड टू फोकस ऑन रेमीडिंग स्पेसिफिक इनजस्टिसेस. ठीक है, आपको लोगों की जो बेसिक इनजस्टिसेस हैं, स्पेसिफिक इनजस्टिस हैं, पहले भी मैंने बात की थी किसी लेक्चर में कि डॉक्टर सेन परफेक्ट सोसाइटी बनाने के बारे में बात नहीं करते हैं. वो कहते हैं डोंट गो फॉर क्रिएटिंग अ परफेक्ट सोसाइटी, क्रिएट एज परफेक्ट सोसाइटी एज पॉसिबल, एज जस्ट सोसाइटी एज पॉसिबल. ठीक है, और उसमें आप लोगों की बेसिक नेसेसिटीज जो किसी क्षेत्र में, फॉर एग्जांपल बाढ़ग्रस्त लोग हैं, फ्लड अफेक्टेड पीपल, स्पेसिफिक इनजस्टिसेस में यू कैन टॉक अबाउट कैंसर पेशेंट्स, यू कैन टॉक अबाउट कैंसर पेशेंट्स. अब कैंसर पेशेंट्स को कैसे आराम मिलेगा? इन्होंने बात की थी, आप कैंसर पेशेंट को आप जितनी मर्जी परफेक्ट सोसाइटी बना लो, उनको फायदा नहीं होगा. लेकिन अगर आप उनका जो ड्रग है, कैंसर ड्रग है, if you wave off patent on cancer drug, so it becomes affordable for them. So that is how we are focusing on what? Remedying specific injustice. यहाँ पे स्पेसिफिक इनजस्टिस क्या है? कैंसर पेशेंट को भाई दवाई चाहिए, दवाई है लाखों रुपए की. अब वो क्या कहते हैं कि भाई उनका पेटेंट आप खत्म कर दो, वही दवाई उनके लिए अफोर्डेबल मिल जाएगी, कुछ हजारों में मिल जाएगी. तो यहाँ पे परफेक्ट सोसाइटी बनाने की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ वो एक बेसिक एक इनजस्टिस को, अग्रीव बंदों की प्रॉब्लम को एड्रेस करने की बात कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन कोट एक्सपर्ट्स, बट उसको आप इंटरनलाइज करो उस आइडिया को. आई हैव कोटेड वन. इसी तरह से बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आप कोट कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो कोट स्टडीज लाइक फ्रॉम एआरसी की रिपोर्ट हो गई. ठीक है, आईएमएफ की रिपोर्ट हो गई, आईएमएफ का कुछ डेटा हो गया, एडीआर की इंडिया में रिपोर्ट आती है कुछ, या फिर पार्लियामेंट ने कुछ कुछ नए अमेंडमेंट्स लेके आई हैं, पार्लियामेंट की बिल्स. तो नेक्स्ट यू कैन टॉक अबाउट बिल्स ऑल्सो, बिल्स एंड एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, आप उसको भी कोट कर सकते हैं. So that will bring more authenticity. Also, you can quote constitution. You can quote constitution, various articles. ठीक है, you can quote various articles. For example, what are the articles with respect to women emancipation? Can anyone tell me a few articles? Women emancipation. Anyone? Yes, please go ahead.
Article 15 and 16. What is Article 15 and 16? So some special provision for the upliftment of the backward classes and women and children. Article 15 क्या है exactly? So article there should be no discrimination on the basis of the ground caste, gender, What is 16? caste, What is 16? equal opportunities in. I have basic idea about Article 16 opportunities in the public sector and About what? About employment, basically, isn't it? It's talking yes, sir. about employment. Yeah. Any other articles? Yes, Kashish, please go ahead. Sir, Article 42, it talks about the maternity relief. Okay, very good. That is a very important article, जिसके बेसिस पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी आपका पास हुआ है. 1961 में एक्ट पास हुआ था. किसी को पता है अमेंडमेंट कब हुई थी इसकी? एनीवन कैन टेल मी व्हेन वाज दिस एक्ट अमेंडेड? 2017 में इट वाज अमेंडेड. 12 से 26 वीक्स कर दिया था मैटरनिटी लीव को. ठीक है, पहले 12 हफ्ते हुआ करती थी, अब 26 हफ्ते कर दिया था. सिमिलरली यू कैन कोट वेरियस आर्टिकल. सो दिस विल, अब कुछ जजमेंट्स, इसके अलावा आप जजमेंट्स कोट कर सकते हो. यू कैन कोट जजमेंट्स. जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑब्लिक हाई कोर्ट, प्रेफरेबली सुप्रीम कोर्ट. अब इसमें कुछ पॉपुलर जजमेंट्स हैं, जैसे केएस पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 में आई थी. इट वाज अबाउट प्राइवेसी राइट्स को स्ट्रेंथन किया. देन अबाउट द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर्स यू हैव नवतेज सिंह जोहर. नाज फाउंडेशन, this is for transgenders. Then you have Indira Sahni case. किसके लिए? Anyone? Indira Sahni case. Mayuri wants to answer. So reservation, it should not be greater than 50%. Yes. ठीक है, तो इसी तरह से आपने जजमेंट्स, एक कुछ आपने नोट्स बना लीजिए जिसमें आप इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, एटलीस्ट आप 10 से 15 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रख लीजिए. कैटेगराइज कर लीजिए उनको सेक्शंस में इनटू वुमेन, चाइल्ड वेलफेयर के ऊपर कुछ आ गई. ठीक है, फिर और ट्रांसजेंडर्स की मैंने बता दिया आपको. ठीक है, और बाकी जो सेक्शंस हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर. ठीक है, इस तरह की. तो इस तरह के आप कुछ कुछ एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं. तो ऐसे अगर आप करेंगे, इंट्रोडक्शन को आप ब्यूटिफाई करेंगे, अपने बॉडी और स्ट्रक्चर में इस तरह के आप एग्जांपल्स कोट करेंगे, तो आई एम श्योर द एग्जामिनर इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू हैवीली. क्योंकि अदरवाइज हम ऐसे कहानी डाल के आ जाते हैं तो बोलते हैं नंबर नहीं मिले यार, मुझे नंबर कैसे मिलेंगे, आपने काम ही नहीं किया है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू स्ट्रक्चर योर बॉडी. एंड देन व्हेन यू कम टू कंक्लूजन, दिस अप्लाइज फॉर बोथ शॉर्ट आंसर्स एज वेल एज एसेज. शॉर्ट आंसर्स में आपने ऑब्वियसली आपको इंट्रोडक्शन लंबी नहीं लिखनी है. शॉर्ट आंसर्स में आपको इंट्रोडक्शन 1 या 2 लाइन की लिखनी है. उसमें आप डेटा रिपोर्ट कोट कर सकते हो, डेटा या रिपोर्ट, उसमें कोटेशन नहीं आएगी. बाकी बॉडी का रूल सबके लिए सेम है. और कंक्लूजन में भी you will obviously focus on some suggestions. You will focus on some suggestions. You will focus on suggestions. Suggestions could be policy suggestions. ठीक है, some think tanks, policy or think tank suggestions. Your own wisdom, but preferably avoid करना है अपनी wisdom. Your own wisdom would mean expert wisdom. So don't use your own mind. Means expert wisdom. ठीक है, try to quote from experts. Also some recent initiatives that have been taken. For example, अगर आप environment पे बात करते हो तो you can, if you're talking about environment, तो उस पे you can talk about how India is focusing on
that we must align our vision towards net zero by 2070, how we want to achieve that, how we are going for a greater green push, उसमें हमारी लाइफ मूवमेंट की हम बात करते हैं. And apart from that, we can focus on climate finance, etc. कुछ इस तरह की आप चीजें कोट कर सकते हैं. ठीक है. So these are a few things that I think we can focus on while writing our essays. This is how we can structure our essay. So the basic premise in the essay, that should be clear. What is the basic premise? Then you should try to build your arguments seamlessly. One paragraph follows to the next, and it should come across not mechanical, but as if it is like flowing like a don't be too mechanical in approaching your essay. ऐसे को लिखते वक्त हमेशा कोशिश करनी है कि आप और उस टॉपिक की नर्व को आप छू सके, है ना. ट्राई टू टच द नर्व ऑफ दैट आर्गुमेंट. ठीक है. एंड सिमिलरली different choice of topic is also going to be very important. So the topic that you choose. अब कुछ चीजें ध्यान में रखनी है. जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो वी हैव टू चूज वन ऐसे आउट ऑफ 4 में भी. जब हमने एक ऐसे चुन लिया है, once we have chosen that essay, after you have chosen that essay, focus all your energy for 5 minutes, try to brainstorm. I taught in previous lecture कैसे brainstorm करते हैं हम, है ना. जो नए स्टूडेंट्स है वो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां से आप देख लीजिए हाउ वी ब्रेनस्टॉर्म. ठीक है. तो उसमें ब्रेनस्टॉर्म आप कैसे कर सकते हैं. अब ब्रेनस्टॉर्म कीजिए उस टॉपिक पे, ट्राई टू अलाइन योर आइडियाज. और मैं सजेस्ट करूंगा एसए के केस में इंट्रोडक्शन आप लिख लीजिए. ट्राई टू राइट एन इंट्रोडक्शन प्रॉपरली, बढ़िया से एक आर्टिकुलेट करके, एंड देन लेट योर आइडियाज फ्लो वन बाय वन एज यू गो फर्दर. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने स्टार्ट अच्छा किया और हम बड़े स्लो हो गए बीच में एंड टुवर्ड्स द एंड हमने रश अप कर दिया. वो रश अप करोगे तो एंड में फिर एग्जामिनर को लगेगा कि यार खाना खिला दिया, स्वीट डिश बोला लेकिन दी नहीं, तो फिर अब बेचारा जाएगा घर से तो मजा नहीं आएगा उसको, तो ही विल गिव यू लेस मार्क्स. सो ट्राई टू ट्रीट इट लाइक एन इमोशनल थिंग. आप अगर किसी का ऐसे चेक कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, आप क्या देखोगे कि हम तो जब लिखते हैं हम सोचते हैं हमने लिख के निकल लिए, बच गए. हम एंड में होता है ना, हमने यार पेपर मुका दिया, बारी मुका दी, हो गया काम. लेकिन एग्जामिनर तो पूरा दिन बैठा, उसके बाद टाइम ही टाइम है, उसको पैसे मिलते हैं चेक करने के, वो एक एक चीज देखेगा. उसको लगे यार स्टार्ट तो अच्छा किया था बच्चे ने, एंड में जाके ना कंक्लूड नहीं कर पाया, तो वो चाह के भी ना आपको वो 2 एक्स्ट्रा नंबर नहीं दे पाएगा. तो आपने वो टाइम पूरा अपना फ्रेम डिवाइड कर लेना है कि मेरे को इतना टाइम देना है इसमें, आई हैव टू गिव दिस मच टाइम टू द एसे. इतना मेरे को इंट्रोडक्शन में देना है. या फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 घंटे का टाइम है उसमें, तो अगर आप आधा घंटा ऐसे को देते हो, उस आधे घंटे में 5 मिनट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में ले लो, 25 मिनट लिखने में ले लो, या 30 मिनट, ज़्यादा भी टाइम दे सकते हो आप ऐसे में. बाकी आंसर्स में थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से लिखना है. और 25 में से अगर आप 20 नंबर भी ले आते हो, दैट विल बी ग्रेट. दैट शुड बी योर फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग. और दूसरा, ये मत सोचो कि नंबर कितने मिलेंगे, ये ना दिमाग में होना चाहिए, ना ये मुझे सवाल पूछेगा कभी, क्योंकि मैं, मेरे से डांट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि मैं ऐसे सवालों के जवाब देता नहीं हूँ कि कितने नंबर आ जाएंगे क्या होगा. आपने क्या करना, अपना बेस्ट देना है, अपना ही बेस्ट देना. आपने क्या करना है कि मैं प्रोसेस सही फॉलो कर रहा हूँ, am I doing what is required to be done. No, I've given you a brief picture of how we have to approach our essays, what is the work. अभी आप बताइए मुझे, are you ready to write essays. आपको अभी लगता है कि आपको भी काम करने की जरूरत है, या अभी आप बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं. Maybe you can share your insights. The floor is open. Take your name and share your comments. सर रफीन, अभी काफी काम करने की जरूरत है सर. Like, क्या लगता है? Like sir, in the brainstorming part, firstly need to ताकि creativity align हो पाए सर, creatively सोच पाऊँ सर, and express करने में concise और more concisely and precisely express कर पाऊँ एक structured manner में सर. Good. Others? Sir, my Hello, name sir. is Anjali. Mm-hmm. Sir, I think anecdotes, data, report, इन सबको सही तरीके से पहले कलेक्ट करना, ताकि in which part I'll use, I need to make sure I have enough data so that I'll be able to use it in my. तो क्या सिर्फ कलेक्ट करने से होगा? नहीं होगा कलेक्ट करने से. सिर्फ हमें कलेक्ट करना है उसको. कई बार क्या होता है ना, हम एक टॉपिक को पढ़ते हैं, मे बी आर अंडरस्टैंडिंग डजंट गो टू डीप इनटू दैट.
ठीक है ना, हमने समझ लिया। फॉर एग्जाम्पल आप खुद फिलोसफीज पढ़ने जाओगे, मे बी आप उस डेप्थ में नहीं पढ़ पाओ चीज़ों को, आप कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ पाओ, तो आपने एटलीस्ट इतनी कोशिश जरूर करनी है कि वो डेटा को मैं किस कॉन्टेक्स्ट में समझना है, तो उस एग्जाम्पल की या उस थ्योरी की या एक्सपर्ट की जो कमेंट्री है उसको इंटरनलाइज करना है। थोड़ी सी बैकग्राउंड रीडिंग करनी है, ज्यादा टाइम नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल यू रीडिंग अबाउट डॉक्टर सेन, और फॉर दैट मैटर एनी अदर फिलोसफर और इकोनॉमिस्ट लाइक जॉन रेज और अदर फिलोसफर्स, तो आपने थोड़ा सा आधा घंटा दे देना है उनकी और पेपर्स का ब्रीफ स्टडीज पढ़ लेनी है। यू गूगल करते हो तो रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एनी आर्टिकल और मे बी समराइज कर लो। आजकल आई डोंट recommend यूजिंग चैट जीपीटीज बिकॉज दैट विल, particularly for essays I don't recommend that, because आपका दिमाग वो थोड़ा सा चोक कर देगा। पर आप इनको थेरीज को पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या चैट जीपीटी में आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि थिंकर्स हु वी कैन यूज, फिर उसको पढ़ के अपने नोट्स में आप बना लो उसको रटो मत, उसको अपने नोट्स में कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लो। दैट इज हाउ यू विल बिल्ड आउट। या तो ये बेसिक थोड़ा सा आइडिया था कि जो अभी आई थिंक आई विल ओपन द फ्लोर फॉर अ फ्यू क्वेश्चंस इफ यू हैव योर डाउट्स, तो आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं जो पूछना चाहते हैं। वी ओपन द फ्लोर, टेक जस्ट रेज योर हैंड, फ्रॉम दैट आई टेक योर नेम एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। तो कुछ आपके सवाल हैं वो हम ले लेंगे अब। हाउ, व्हाट आर योर डाउट्स रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एंड, ठीक है। यस मायूरी, प्लीज गो अहेड। Sir, I was having doubt that essays of like 20 marks. So, like one essay would be asked or two, or if only one would be asked, so how much we need to write? Like the time limit is also of just 1 hour. So in 1 hour, like essay comprehension and two long answer type questions. So how many papers we need to finish for essay? हाँ, ऐसे देखिए, आपको 25 आई थिंक मार्क्स का प्रोबेबली पूछने जाने का प्रोबेबिलिटी है, 25 मार्क्स का। अब 25 मार्क्स में आई वुड सजेस्ट आप अपना एक स्पीड, अपना असेसमेंट लगा लो कि आपकी स्पीड कितनी है लिखने की। ट्राई टू असेस योर स्पीड एंड डिवाइड द टाइम अकॉर्डिंगली। मुझे लगता है आधा घंटा आप तो दे सकते हो, यू कैन गिव 30 मिनट्स, आधा घंटा तो आप दे सकते हो। तो आधे घंटे में मुझे लगता है कि आप एटलीस्ट 500 to 600 वर्ड्स हमें लिख पाना चाहिए। वी शुड बी एबल टू राइट 500 to 600 वर्ड्स। कोई पेनाल्टी तो होगी नहीं ज़्यादा लिखोगे तो, ठीक है, अनलेस इट इज स्टेटेड। तो आई वुड एडवाइज कि 500 to 600 वर्ड्स तक हमें जाने का प्रयास करना चाहिए, और टेम्पलेट वही फॉलो करना है, 2 पैराग्राफ्स पर पेज। इसको आप पूरा अपना रामबाण बना लो, टेक मेक इट अ गॉस्पेल ट्रुथ। 2 पैराग्राफ्स पर पेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 पैरास पर पेज, ठीक है, एंड आई वुड से 70 to 80 वर्ड्स पर पेज एज वेल, एंड ईच पैरा शुड एंड ऑन द सेम पेज। मतलब ईच पैरा शुड स्टार्ट फ्रॉम द न्यू पेज से नया पैरा शुरू होना चाहिए। तो आपको अपनी आर्गुमेंट ऐसा नहीं है कि एक लाइन आधी खत्म हुई, अगले से हमने उसको कंटिन्यू किया, वो नहीं करना है, वो करना ही नहीं है। वो रूल बना लेना है, प्रैक्टिस, कि हमने अगर उस पेज के एंड तक हमने वो पैरा को खत्म करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, मैं जो ऐसे कई बार मैं चेक भी करता हूँ, तो ऐसे क्या किया होगा, टॉपिक लिख दिया या जो भी, फिर ऐसे लिख रहे हो लिख रहे हो लिख रहे हो, बहुत क्लमजी ऐसे पास 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 लिख दिया, और दूसरा पैराग्राफ भी बहुत बड़ा 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 बड़ा, तो उसका मजा नहीं है। आपने पूरा इसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना है। आपकी 5 से 6 लाइनें लिखो आप, जैसे आपने लिखा फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया, इट शुड बी वेरी प्रॉपरली स्पेस्ड। एक पैराग्राफ खत्म हो गया, यहाँ पे हो गया, दूसरा आप यहीं से मिडिल से स्टार्ट करना आपने, 1 2 3 4 5 और 5 खत्म। दैट इज हाउ इट लुक्स वेरी प्रेजेंटेबल। अब अगर इसको इसमें और घुसा दोगे, जगह की कमी तो होगी नहीं ना। और हैंड राइटिंग आपका बोल्ड, थोड़ा बड़ा साइज का हैंड राइटिंग लिखो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिपेंडेंस लिख रहे हो, ये इंडिपेंडेंस पढ़ा जा रहा है, अब वो बुढ़े बुढ़े लोग अगर पढ़ेंगे, उनको पढ़ने में ही दिक्कत हो जाएगी, या किसी की आई साइट कमजोर होगी, या आप भी पढ़ोगे किसी ने इतना छोटा छोटा लिखा है, यार अगर आप ऐसे लिखोगे, विच इज बेटर, ऑब्वियसली दिस वन, दिस इज नॉट हाउ वी शुड बी राइटिंग। तो ये छोटी छोटी सिमेंटिक्स हैं जो आपको ध्यान देना है कि हमें लिखना कैसे। क्योंकि खाना जितना मर्जी अच्छा बनाया है, अगर आपने थाली में दाल चावल सब मिक्स कर दिया, सब्जी ले खा लो यार, वो बोलेगा रहने दो यार, मुझे खाने का मन ही नहीं है। तो ऐसे खाना परोसोगे तो खाना बनाना भी अच्छा है और परोसना भी अच्छा है। यू हैव टू सर्व इट विद डिग्निटी एंड ग्रेस
बी कंप्लीटली हॉस्पिटेबल टू द एग्जामिनर. सी, आपको ये चीज समझनी है कि आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमंस. तो साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर भी समझनी है आपने. अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर. आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन मायरी. Yes, sir. है ना, आपने कोशिश ये करनी है कि आप वर्ड से ज्यादा टाइम पे स्पेस करो. 500-600 वर्ड्स और आधा घंटा, 35 मिनट्स भी चले जाएगा, नो प्रॉब्लम. क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में मुझे नहीं लगता 5 मिनट से 6 मिनट से ज्यादा लगना चाहिए आपको. अब वो प्रैक्टिस करके थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन तो सबसे आसान है. पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से आपको लिखना है, तो वो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं. और आंसर्स होंगे जो 10 नंबर के होंगे, अगर 2 आंसर या 15 नंबर के, 10 नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप 7 मिनट में उसको फिनिश करना है आपको. ठीक है. अब आंसर में आप थोड़ा 19-20 फिर भी चल जाएगा. एसए में मुझे लगता नहीं चलना चाहिए. एसए में आपको कोशिश करना चाहिए कि 20 नंबर आप, मैं चाहता हूं आपका ओवरऑल 40+ स्कोर आपको आना चाहिए 50 में से मिनिमम. तो पिछले बैच के भी स्टूडेंट्स थे, दे हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन फेज 2 एंड फेज 3. इंटरव्यूज में भी दे हैव डन वेल, और फेज 2 में तो 40+ आपका टारगेट. ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग नंबर टारगेट आपका ये होना चाहिए, पर आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए. व्हेन आई से कि 40+, इट मींस योर प्रिपरेशन शुड बी इमैक्युलेट. इट शुड बी लाइक नो होल्ड्स बार्ज. ठीक है ना, पूरा बेस्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटेलेक्चुअल युवा, आप पूछिए. So I have multiple questions. प्लीज आस्क First वन. one, वी विल कम बैक टू ए सेकंड क्वेश्चन बिकॉज वी हैव टू टेक अदर क्वेश्चन. सेकंड टर्न में आपके दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे. आस्क वन क्वेश्चन फर्स्ट. so या, first question is, can we write a Hindi or a Sanskrit quote? And if yes, then what will be the script, like Devanagari or in Roman? no, you have to write in Roman, you have to write in English. Script has to be, this is a good question. Script has to be in Roman, इंग्लिश में ही लिखना है आपको. जैसे मैंने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या लिखा था, वो अंग्रेजी में ही लिखा था मैंने, रोमन में ही लिखा. तो आपको स्क्रिप्ट रोमन ही रखनी है आपको. यू Thank कैन you, sir. यूज, अवॉइड करना है, लेकिन थोड़ा सा जहाँ पे यूज कर रहे हैं, इट शुड बी वेरी रिलेटेड टू इट. वी शुड नॉट ओवर डू एनीथिंग. ठीक है, वो बैलेंस. जैसे बुद्धिज्म का एक और कोट है, अजमिन सती इदम भवति. तो दिस इज अबाउट द प्रत्युत समुत्पात. तो इसको आप हिंदी में नहीं लिखना है. इंग्लिश के पेपर में कभी हिंदी में नहीं लिखना, और हिंदी के पेपर में कभी इंग्लिश में नहीं लिखना. ये हमेशा थंब रूल बना लो. ठीक है. व्हाट वाज अदर क्वेश्चन? मे बी विल टेक वन मोर क्वेश्चन बिकॉज इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन ले लेंगे आपका. So other question is, basically I have an issue in certain topics like artificial intelligence or disaster management. I'm good at writing about social issues. I have done masters from sociology, and I also co-founded an NGO. So I'm good at social issues and that emotional angle. But when it comes to very informative type of essays or questions, I get stuck. I get your point. You love to write philosophical essays more, and you become hijacked, feel hijacked in technical essays. Is that the question that you're asking? Yes, sir. Technical as in cyber security, or maybe about economy of that sort, isn't it? Yes, sir. तो आपने इसका एक ही हल है इसमें. देखो, अगर आप अच्छा लिखते हो, तो आप तो हर चीज में अच्छा लिख सकते हो. वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वेदर इट इज अ टेक्निकल ऐसे, और अ फिलोसॉफिकल ऐसे. ठीक है. आपने उसके लिए, टेक्निकल के लिए थंब रूल यही होता है कि यू शुड हैव सब्जेक्ट नॉलेज. ठीक है. अगर आपको नॉलेज नहीं है, यू विल बीट अबाउट द बुश, उसमें फिर नंबर नहीं मिलेंगे. तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें कोशिश ये करनी है, तो हमारी जो फिलोसॉफिकल नॉलेज है, दैट वी विल कीप इंटैक्ट, बट एट द सेम टाइम विल ऑल्सो ट्राई टू वर्क ऑन दीज. अब जैसे आपने डिजास्टर मैनेजमेंट, और कौन सा टॉपिक बोला आपने? साइबर सिक्योरिटी, है ना? तो उसके Yes, बारे sir. में Artificial हाँ, intelligence. दिस एक्चुअली इट्स अ वेरी इजी टॉपिक. उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. आपने उसको कैसे कनेक्ट करना है. ठीक है ना. जैसे मैंने वो उसका अनेकांतवाद का एग्जांपल आप इसमें भी एंड में कोट कर सकते हो कि टेक्नोलॉजीज की इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं. सो यू हैव टू बिल्ड दैट एक्सपर्टीज कि आप किस लेवल पे पहले उस चीज को समझते हो, है ना. और सब्जेक्ट मैटर नॉलेज करनी है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा. बिकॉज अगर आपने पढ़ा ही नहीं एआई के बारे में, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज एआई, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, अब डिजास्टर्स को काउंटर कैसे करना है. अब व्हेन डिजास्टर कम्स, देयर आर 3 protocols. So there is a pre-disaster preparedness, there is the during disaster, you know, operations, and then the post-disaster rehabilitation.
अब आप इस तरीके से डिजास्टर रिलीफ में अप्रोच करेंगे, कैसे डिजास्टर के लिए हमने पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी है, वार्निंग्स इशू करनी है, पूरा अपना जो जैसे साइक्लोन सुपर साइक्लोन उड़ीसा वाले बेल्ट में आते हैं तो वहाँ किस तरह का अप्रोच होना चाहिए, एनडीएमए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, उनकी कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है, मीडिया का कैसे बुलेटिन हमें जारी करने चाहिए, सोशल मीडिया चैटर को या फेक न्यूज़ को जो प्रोपेगेंडा है या किस तरह का जो पैनिक र्यूमर मॉन्गरिंग होती है उसको कैसे आप काउंटर करोगे। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग आई वुड सजेस्ट, ट्राई टू रीड एंड ब्रेन स्टॉर्म दैट काइंड ऑफ अ लिमिटेशन, और जो आपको लगता है कि कुछ एक थोड़ा सा एक इनहिबिशन फील होती है, नॉलेज इज द क्योर। तो ट्राई टू गेन एज मच नॉलेज अबाउट अ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। आई डोंट वांट यू टू क्रैम ऑन दैट, पर थोड़ा सा अपना बेस थोड़ा सा ब्रॉडन कर लो। ठीक है, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Yes, sir. Thank you so much, sir. Okay, okay. Rishabh, you can ask your question. Afternoon, evening, sir. Can you hear me, sir? Yeah, very good evening. If possible, I would advise you to keep your camera on while asking the question at least. Sir, I am actually in a hotel and there's a party going Okay. on. That's why I'm. Okay. Go ahead. Go ahead with your question. The question was that this year there has been a significant change in the tier 2 pattern. As per like official notification, last year like the essay was for 30 marks. But this year, the maximum marks allotted for the essay is 20, and on top of that, there has been like certain additions as well, like 2 long questions along with comprehension. So, sir, what I mean to say is that is there a change of approach needed, sir, as compared to last year, sir? Because since the essay, the maximum marks has been reduced, so but how much time and in how many words should be compile it up? I think how many time and how many words that I've already answered. But responding to the first part of your question, that there has been a drastic change, I don't see there is any drastic change in that. ये जो propaganda create किया जाता है, आप don't fall for that any of that propaganda. How exam will happen, how the examiner will frame the questions, that is not my business, that is not your business. Your business ऐसे 30 नंबर का है या 300 नंबर का है, approach remains the same. अगर हमें ड्राइविंग करनी आती है तो या रनिंग करनी आती है, वी कैन गो फॉर स्प्रिंट्स एज वेल एंड वी कैन गो फॉर मैराथन्स एज वेल, ऑल्दो ट्रेनिंग कैन वेरी अ लिटिल बिट हियर एंड देयर, दैट्स द डिफरेंट थिंग। तो आपको जो बेसिक जो हमने चीजें फॉलो करनी है दैट रिमेन्स द सेम। अगर आपका नॉलेज बेस अच्छा है, ठीक है, इफ यू हैव गुड नॉलेज अबाउट सर्टेन टॉपिक्स, अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक्स, टेक्निकल टॉपिक्स, फिलोसॉफी, वेयर एज एक्सपर्ट नॉलेज, इन चीज़ों पे आपका करंट अफेयर्स पे कमांड अच्छा है, तो आपको 20 नंबर के लिए भी लिखने में उतनी ही आसानी होगी जितना आप 50 नंबर के लिए लिखोगे। वो आपने मेच्योरिटी डेवलप करनी है। मैंने आपको वही बताया कि 30 मिनट्स का विंडो समझ लीजिए, ऐसे को दे दीजिए, उसमें आप जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए, टाइम अपना उस तरह से डिवाइस कर लीजिए, प्रोटोकॉल आपका सेम होना चाहिए जो मैंने बता दिया। एंड नथिंग मच टू लुक इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स की पैटर्न ड्रास्टिक चेंज हो गया, अभी अप्रोच चेंज करनी चाहिए। यार बच्चे पूछते हैं कि सर पढ़ना कैसे चाहिए। सम फ्यू डेज बैक आई वाज टॉकिंग टू अ कैंडिडेट कि सर मुझे पढ़ना कैसे चाहिए। मैंने कहा किताब खोलिए, पढ़िए। आंसर कैसे लिखना चाहिए, कॉपी खोलिए, पेन लीजिए, लिखिए। कुछ फंडा नहीं है जिंदगी में। सबसे बड़ा फंडा है कि कोई फंडा ही नहीं है। देर इज नो फंडा, देर इज नो रूल, नो बडी मेक्स द, यू मेक द रूल्स, you make your own rules. You can take guidance, you can take, simply somebody can just tell you what is to be done, but spoon feeding अवॉइड कीजिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने आप पे ट्रस्ट भी करिए कि दिस इज हाउ आई हैव टू गो फॉरवर्ड। तो दैट अमाउंट ऑफ दैट लेवल ऑफ प्रोफेशनल कंपीटेंस हमें डेवलप करनी है कि अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसको आप देखो एग्जाम को ना प्रैक्टिकल जॉब से अलग करके मत से सोचो। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप इंटेलिजेंस में हो या आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो या किसी भी महकमे में हो, आपको कोई काम दिया जाता है, वो काम रिसर्च रिपोर्ट आपको 2 महीने में भी सबमिट करनी पड़ सकती है या 2 हफ्ते में भी। उसके लिए आपको यू हैव टू बी sharp enough, adept enough. That is why I always encourage you to think on your own 2 feet. अपने सोच डेवलप करो। जब आप अपनी सोच डेवलप करोगे तो ये क्वेश्चंस इरेलीवेंट हो जाते हैं कि 2 सवाल पूछो जितने सब। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं एक्चुअली थोड़ा सा आई एम अ लिटिल अनकन्वेंशनल इन दिस अप्रोच। आई डोंट बॉदर विद दिस कि एग्जाम कैसा होगा। हम तैयार हैं तो जैसा भी होगा। अब कल को बोलोगे कि उन्होंने ये पैटर्न दिया, एग्जाम में वो पैटर्न चेंज कर देंगे, आप क्या सवाल उठाओगे कि नहीं सर हमें बोला था ऐसे, अब सवाल तो चेंज कर दिया उन्होंने, 50 नंबर का ऐसे ही दे दिया।
तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, समझ रहे हैं आप? ऑल्दो द पैटर्न इज इंडिकेटिव ऑफ हाउ द एग्जाम इज गोइंग टू हैपन, पर हमें रेडी रहना हर इवेंचुअलिटी के लिए. वी शुड शार्पन आवर एक्स so much that even with one hit we are going to cut the entire tree. Although I advise not to cut trees, we should plant more trees, but that's the idea. A best person, the best woodcutter वो होता है, अगर उसके पास 8 घंटे हैं तो 60 घंटे क्या करेगा वो? अपनी एक्स को शार्पन करेगा. ठीक है ना? बैठ के आराम से अपनी एक्स को शार्प करते रहो करते रहो करते रहो. फिर वो आपको आधा घंटा मिलता है कि 1 घंटा मिलता है, वो आप उस पर अपना बेस्ट तो दे दोगे. तो फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू एंड नॉट व्हाट द पैटर्न इज, नॉट व्हाट द एग्जामिनर इज. ऑल द ब्लॉक ऑल द नॉइज ऑन सोशल मीडिया. अभी आजकल के जमाने में ना ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है ना, दैट हैज रिड्यूस्ड आवर cranial mental capacity also. So that has our intellectual drive and the curiosity of the generation is going down the drain in general. That's a disturbing trend. So I hope this should be the approach, and if you go by this, any pattern you will be able to crack it. Is that सर ये कह रहे थे कि मतलब जो मेरा मेन कंसर्न था सर वो ये था कि जैसे कि ये जो 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कहा गया है कि थोड़ा करंट अफेयर्स का मिक्स आएगा, इकोनॉमिक. ये आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं. ठीक है? I think you need to introspect and meditate a little bit. I again said these things. उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा वो मेरा बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है. आप करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है, कन्वेंशनल भी पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना है. जी अब सर, उसमें क्या यही चीज समझ कह रहे थे कि उसपे हाँ यूपीएससी में होता है कि आंसर्स के लिए करंट अफेयर्स को बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लेके पढ़ना पड़ता है. तो इन जो 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इसमें कम से कम नहीं भी तो अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम मतलब करंट अफेयर्स को दे, मतलब मैगजीन्स थोड़ा डेप्थ में पढ़ें, या फिर मतलब किस तरीके का अप्रोच रहे? ये सर मेरा ये था, तैयारी कैसे करें देखिए, सर? तैयारी करने के लिए देखिए, तैयारी का अप्रोच हमारा ये होना चाहिए. यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, आपके पास अभी तकरीबन 50 to 2 60 महीने. डेज है. Probably 50 to सुनिए, listen to me. Probably you will have 50 to 60 days for the exam. Probably let's assume 50 days. अब इन 50 डेज में आप 2 साल की तैयारी तो नहीं कर सकते हैं अगर आप पहले से नहीं पढ़ रहे हैं तो. ठीक है? इन 50 डेज में व्हाट यू कैन डू, न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो. अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो अगेन दैट इज अ क्रिमिनल एक्ट एज पर योर प्रिपरेशन. तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव भी डेवलप हो रहा है. ठीक है? और जो करंट इश्यूज हैं लास्ट 2 से 3 महीने के, ऑब्वियसली यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट. तो उसमें डेप्थ आप उस एग्जाम के हिसाब से आंसर करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया. सो आई एनकरेज, आई डोंट सेपरेट कि यूपीएससी के लिए ऐसे पढ़ना है या इस एग्जाम के लिए ऐसे पढ़ना है. पढ़ना है हमें. हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है उस टॉपिक के लेके इन डेप्थ. आवर अंडरस्टैंडिंग शुड बी वेरी गुड. हमें अपने आप को क्या इतना ही नॉलेज गेन करना है क्या? उसमें कोई बैरियर नहीं होता है नॉलेज में. नॉलेज हमें पूरी लेनी है. अब उसको हम अपना दायरा क्यों सीमित रखना है? अपने आप को सीमित नहीं रखना है, हमें हमें अपना दायरा बढ़ाना है. नॉलेज, अब एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टडिंग पाकिस्तान सऊदी अरेबिया डील. what happened, so I should be aware of the major provisions of that deal and what would be the geopolitical implications for India, or for that matter the wider मिडिल ईस्ट में क्या होगा, या इसराइल का उसमें क्या, यूएस का इन्वॉल्वमेंट क्या है. तो वो आप यूपीएससी में भी लिखेंगे वही आंसर होगा, आईबी में भी लिखेंगे वही आंसर होगा, इंटरव्यू में भी देंगे वही आंसर होगा. तो नॉलेज में कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होती है और करनी भी नहीं चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, होत्रिक, यू कैन आस्क. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. what was your name जिन्होंने सवाल पूछा था? ऋषभ सर. ऋषभ. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. यस सर. Okay, good. Hotrick, please go ahead. Sir, can we draw diagrams, flowcharts, or maps in essays, or how and keywords? What should be the underlining criteria? Flow charts and underlining. Yes, sir. Underlining keywords like or of. सी फ्लो चार्ट्स के लिए मैं तो देखो कोई रूल, मुझे तो लगता है कि कोई रूल नहीं होता है वैसे. फ्लो चार्ट्स बना सकते हो और नहीं भी बट जनरली जो जो नैरेटिव है पब्लिक में या जो एक्सपर्ट्स वगैरह बोलते हैं कि फ्लो चार्ट्स ऐसे में नहीं बनाने चाहिए. ऑल्दो मैं नहीं मानता हूँ ऐसा, बट यू डोंट नो हाउ द एग्जामिनर विल टेक इट. तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ऐसे में अवॉइड कर लीजिए, अनलेस वो फ्लो चार्ट बनाने से आपको वो समझाने में, वो जो पॉइंट समझाने में आपको थोड़ा सा एक कन्वीनियंस हो जाता है. इट शुड बी वेरी स्पेरिंगली यूज्ड. सो इट शुड बी अ वेरी स्पेरिंग यूज ऑफ द फ्लो चार्ट्स इन एसेज.
ठीक है, बट इन क्वेश्चंस 10 मार्कर्स 15 मार्कर्स उसमें आप यू कैन यूज विद लिबर्टी, वहां पे आप फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स बना सकते हैं। या फॉर एग्जांपल जैसे इंटरनल सिक्योरिटी पे सवाल आया है, ऐसे आपको इंटरनल सिक्योरिटी पे आया है, तो मुझे लगता है कोई हार्म नहीं है कि इंडिया का मैप आप छोटा सा बना सकते हैं, उसमें आप बता सकते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अंडरलाइनिंग की जहाँ तक बात है, अंडरलाइनिंग बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पैराग्राफ लिखा आपने, उसमें आप पूरा ही अंडरलाइन कर दिया, नहीं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए, सिर्फ कीवर्ड्स को, ठीक है, एक पेज में सिर्फ 4 से 5 या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। सो इट शुड बी स्पेरिंगली डन एज वेल, क्योंकि आपके पास, देखो आप ऐसे लिखोगे आपको रिटर्न आने में उतना वक्त नहीं मिलेगा, तो आपको साथ साथ में ही आप अंडरलाइन करते जाएं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। कहीं कहीं आप कैपिटलाइज भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स को आप कैपिटलाइज कर सकते हो, ठीक है, बॉक्स में कई लोग डालते हैं कुछ हेडिंग्स को, वो भी आप कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, कोशिश करना है कि ऐसे में नहीं करना है, ऐसे में हेडिंग्स नहीं देनी है, ऐसे में देयर आर नो हेडिंग्स, ध्यान रखें, देयर आर नो हेडिंग्स इन एसेस, इन ऐसे यू शुड ऑल्सो ऑलवेज राइट इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट, ठीक है। आई होप दैट आंसर्स। Yes, sir. Thank you. Okay. Next, I think Bhavya. Bhavya, you can ask. Good evening, sir. Sir, can Good we use evening. bullet points in passages in essay? अभी मैंने जवाब दिया आपको यार कि ऐसे में बुलेट पॉइंट्स नहीं लिखने, पैराग्राफ में लिखना Okay, sir. Thank you, sir. है। ऐसे में कोशिश करनी है, देखो ऐसे ना 20 या 25 नंबर का भी लिखते हो, ऐसे ऐसे होता है, तो उसमें आपने थोड़ा आर्गुमेंट बिल्ड करनी है, उसमें आपको 500 वर्ड्स का ऐसे तो मुझे लगता है लिखना ही चाहिए, अराउंड 500 वर्ड्स शुड बी योर ऐसे। 500 वर्ड्स में आप उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखिए, आर्गुमेंट को बिल्ड कीजिए। हाँ, बट उसमें आप बुलेट्स में लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन है उसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन। So my question is for long answer type question. Sir, like, do we have to follow any structure in that, or just we can write like in a paragraph form only? आई वुड एडवाइज, कोई भी आप क्वेश्चन लिखते हो, ऐसे है या कुछ भी है, देखिए कोई भी चीज एक मेथोडिकल तरीके से चलती है, उसमें आप देखिए, आप कहीं पे जाते हैं, पहले किसी को ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं किसी को मिलने से पहले, कभी किसी दोस्त से मिलने जाएंगे, सीनियर को मिलेंगे, क्या बोलेंगे, बताइए, जवाब Yes, sir. दीजिए मुझे, Yes, क्या sir. Great बोलेंगे? करते हैं sir. ग्रीट करते हैं, क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, ठीक है, उसके बाद हाँ जो जी. आपका बात करते हैं, जो एजेंडा होता है वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, और जब आते हैं तो ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हैं या कुछ बोल के आते हैं? नहीं सर, बोलते हैं, बोल के. ठीक है, हाँ जी. वही वही रूल लाइफ में हर जगह अप्लाई होता है, ऐसे आंसर राइटिंग में भी होता है। आप एग्जामिनर पढ़ेगा, आपने छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, 2 लाइन का 3 लाइन का मैक्सिमम, 2 से 3 लाइन, उसमें आपने, अगर क्लाइमेट चेंज पे कोई टॉपिक आ गया, समझ लीजिए फ्लड्स पे आ गया, कि देयर आर सो मेनी लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स हैपनिंग इन द हिमालयन बेल्ट, तो आप छोटा सा कोई रिपोर्ट दे दीजिए, आईपीसीसी की रिपोर्ट दे दीजिए कि एज पर द आईपीसीसी डेटा देयर सो एंड सो लैंडस्लाइड्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस, तो आफ्टर दैट then you can talk about, so the major reasons for the landslides happening in the this region are blah 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 blah, 1 2 3 4 5, छोटा सा मैप बना दीजिए साइड पे, बॉक्स में ना साइड में हल्का सा एक छोटा सा मैप बना दीजिए इंडिया का, ठीक है, उसमें आप हाईलाइट कर दीजिए कहाँ पे लैंडस्लाइड्स होती है, वेस्टर्न घाट्स में क्यों होती है, छोटा सा वहां पे कर दीजिए, तो कुछ कुछ डेटा वहां पे ऐड कर दीजिए, देन यू मूव ऑन टू द सेकंड पेज, और वहां पे आप सोल्यूशंस, सो हैविंग द प्रॉब्लम्स, ये चीजें थी, उसको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे, दीज आर द स्टेप्स, दीज आर द सोल्यूशंस, और दिस इज बीइंग डन, है ना, काउंटर बॉन्डिंग हो गई, या मतलब जो एंक्रोचमेंट है उसको आप रेगुलेशंस लाएंगे, फिर सोल्यूशन दे देंगे कि despite the challenges we are doing good, and these are the things we need to work on, how we can make sure that development and sustainability moves on, and then you can bring Buddha as well as Aristotle. It's good to follow Aristotle's golden mean, that development and as well as sustainability should move hand in hand. That is how you will answer. तो कोई भी सवाल, कोई भी चीज है, यू नो हाउ टू डू इट, बस उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके कर, ठीक है, इज दैट क्लियर? All right, sir. Thank you. ओके, गुड। हु वांट्स टू आस्क, और किसी का सवाल है कुछ? आई थिंक अंजलि हैड अ क्वेश्चन। Yes, sir. But sir, I got the answer. ओके ओके, गुड गुड, ठीक है, और किसी को कुछ सवाल है? एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन? Sir, सो can I ask one more thing?
Please tell your name. I can't see you. सचिन सर, सचिन। सचिन, हाँ पूछिए सचिन। सर एक्चुअली जैसे अगर हमने कुछ कोट किया रिपोर्ट वगैरह है या फिर कुछ कोटेशन उसमें ऐसे में, कैन वी कोट दैट इन द, मतलब कुछ अगर वो रेफरेंस लॉन्ग टाइप आंसर में बैठ रहा है तो वहां भी कर सकते हैं या अवॉइड करें? लॉन्ग टाइम में यार स्कोप ज्यादा नहीं होता है। लॉन्ग टाइम में क्योंकि टाइम कम होगा, वहाँ पॉइंट्स ज्यादा प्रेफरेबल हैं। तो वहाँ पे अनलेस कि आप कंक्लूजन में जैसे दे सकते हो, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जैसे कोई टॉपिक आ जाता है, तो जनरली गांधी जी का वो कोट है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट वन मैन्स ग्रीड। तो वो आप कंक्लूजन में डाल सकते हो, तो वो एक उसको समराइज करता है। उस तरह से आप कर सकते हो। अदरवाइज स्पेयरिंग यूज होना चाहिए बहुत कम। कोटेशंस का बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता रेलेवेंस है। हाँ, कंक्लूजन में आप कुछ विजडम या किसी को कोट कर सकते हो, वैसे आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज नो। या ओके सर, थैंक इज यू। दैट, आई थिंक कशिश यू हैड अ क्वेश्चन। Sir, I got the answer. I had asked ओके, some question. ठीक है ठीक है। आई होप वी हैव हैड good enough discussion now. Most of your questions had been answered. Excuse me, sir. And yeah, please go ahead. Yes, sir. Sir, my name is Anjali. Sir, my question is, I don't have this habit of like writing, and like I write the creative type articles as a hobby, but descriptive type writing, I was preparing for CGL and those type of exams. So how do I develop the deeper understanding of the topics like subject or either technical topic or related to philosophy or psychology? I have the overview, but the I think the knowledge that is required to write a good essay, the deeper knowledge of the topic, how do I develop it in the remaining time that I have? Okay. Have you been reading newspapers? Uh, Yes, sir, I have started पहले नहीं पढ़ते थे? just the headlines, like not. Okay. ओके, सी देखिए, अभी मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि आप बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पढ़ने पे मत जाओ। दैट वी विल टेक केयर इन द क्लास। जो मैं बताऊंगा आप उतना ही सफिशिएंट है। क्योंकि आप 2 महीने में आप सोचोगे कि वो जो 2 साल में या 20 साल में काम होता है हम 2 महीने में नहीं कर सकते। वी हैव टू बी रियलिस्टिक विद आवर टारगेट्स। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, एटलीस्ट वट एवर आई एम टेकिंग इन द क्लास, जो हम क्लास में देख रहे हैं आप वो कर लीजिए। उसके साथ न्यूज़पेपर को मिस नहीं करना है। न्यूज़पेपर को पढ़ना है, टाइम देना है। अभी एग्जाम क्या पता लेट हो या कब हो, हमें नहीं पता है। तो हमें अपनी तैयारी को उस तरह से टेथर कर देना है। हमें जो बेसिक टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन जो हम पढ़ेंगे, उसको आप रिवाइज कीजिए। क्लासेस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिए। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, और उसको फिर आई विल टेक फ्यू सेशंस लेटर ऑन सो दैट वी विल रिवाइज ऑल ऑफ दैट वंस अगेन। बिकॉज टाइम कम है तो हमें टाइम भी सेव करना है और कोशिश करनी है कि हमारी कवरेज ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है ना? तो उसमें यही कोशिश करनी है कि आने वाले टाइम में हम जो बेसिक टॉपिक्स हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, और जो अभी पॉपुलेशन और इंडस्ट्रीज हम पढ़ रहे हैं जो अभी, ठीक है ना, उसको भी आप साथ साथ में करते जाओ। डिजास्टर मैनेजमेंट में फ्लड्स वगैरह, अर्थक्वेक्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इसको भी आप अच्छे से कवर करो। और बाकी जो चीज़ें हैं दैट विल बी टेकन केयर ऑफ इन द क्लास। उसके अलावा आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम टाइम में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव अनरियलिस्टिक टारगेट्स। वी शुड नो आवर लिमिटेशंस, हाउ मच वी हैव रेड, और हमें कितना करना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सब लोग डेली एक आंसर जरूर लिखें रोज का। एटलीस्ट राइट वन आंसर डेली। रोज का एक आंसर लिखना चाहिए आपको। फ्यू थिंग्स दैट शुड बी अनअवॉइडेबल। टू डू लिस्ट एवरी डे। तो टू डू यू शुड डू फ्यू थिंग्स। नंबर वन इज न्यूज़पेपर शुड नॉट बी मिस्ड। न्यूज़पेपर इज अ मस्ट, इसको नहीं मिस करना है। एंड इफ पॉसिबल write two answers every day. Self evaluate them, because that will, even if you don't get it evaluated, it is important to at least get into the art of writing. आपने सिंपल करना है, एडिटोरियल को समराइज करना है। एडिटोरियल समरी अपने वर्ड्स में लिखो। ये आपने डेली ये काम करना है। एटलीस्ट अगले 15-20 दिन आप इसको रेगुलरली करना है। और हर हफ्ते एक ऐसे लिखना है। वन ऐसे एवरी वीक। वन फुल ऐसे पर वीक आप लिखिए। ट्राई टू राइट वन ऐसे पर वीक। ये कुछ चीजें करें। और एक और चीज पर्सपेक्टिव बिल्ड करने के लिए, लिसन टू कमेंट्रीज ऑन यूट्यूब, बट ओनली एक्सपर्ट कमेंट्रीज, नॉट द नॉइज। ठीक है? इसको ज्यादा नहीं, 1 घंटे से ज्यादा मत दो दिन का। 1 घंटा आप जिसको दे सकते हो,
और कोई भी यूट्यूब पे वीडियो आप देखते हो तो 1.5x इज एडवाइजेबल टू सेव टाइम, एटलीस्ट 1.5, 2 में भी सुन सकते हो, क्योंकि मैं तो जब पढ़ता था तो मैं 1.75 2x पे ही सुना करता था। आई डिड नॉट यू नो लेजरली वो सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो 1.5 से ऊपर में ही सुनो ताकि कम टाइम। अच्छा, एक ना डेली वो न्यूज़पेपर एनालिसिस आता है ओनली आईएएस के चैनल पे ना, ओनली आईएएस के चैनल पे एक डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आता है, वो आप सुन सकते हो, एडिटोरियल एनालिसिस। सुमित रेवड़ी सर हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, तो वो पर्सपेक्टिव बिल्डिंग के लिए अच्छा है, तो वो आप सुन सकते हैं। वो आराम से आपको डेली, आप अगर अखबार भी पढ़ लीजिए और कभी टहल रहे हैं जैसे शाम को यू गोइंग फॉर अ वॉक, तो पुट ऑन योर ईयरफोन्स या जैसे भी आप सुन सकते हैं उसको, वो आधे घंटे का डिस्कशन होता है, यू कैन लिसन टू दैट। तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन फोकस ऑन, और धीरे धीरे इम्प्रूव होता है ना। गुड कॉमेंट्रीज, आई वुड से लिसन टू पलकी शर्मा उपाध्याय एज वेल एज कमेंट्रीज में आप पलकी को सुन सकते हो। देन यू कैन लिसन टू आर एस टीवी, राज्यसभा टीवी को, इतना काफ़ी है, दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। एंड इन वंस इन अ वाइल आई ऑल्सो होस्ट सम एक्सपर्ट्स ऑन माई चैनल, सम गेस्ट्स, तो उनको भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि मैं सेंसेशन वाले लोगों को नहीं लाता हूँ, थोड़े से सेंसिबल लोग ही है, दैट्स द वन आई ब्रिंग ऑन माई प्लेटफॉर्म, तो आई विल शेयर दैट इन द ग्रुप, तो वो आप वहाँ से वो भी सुन सकते हैं। अदरवाइज एडिटोरियल एनालिसिस को थोड़ा बिल्ड कीजिए, एंड बाकी जो क्लास में हम कर रहे हैं, आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट। आई थिंक आई क्लास में इट्स नॉट जस्ट अबाउट, वी आर नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर द फेज 2, बट आई थिंक द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटेड ऑनली, क्योंकि अलग नहीं होता, मैं अलग नहीं मानता हूँ उसको, दिस इज ऑल इंटीग्रेटेड, because answer writing or interview, it's a reflection of your persona, how you have refined yourself as a person, and always understand challenges, and all of these things come in your life only to shape you, they polish you, they refine you. You should not get bogged down by any of the challenges. और अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अंजलि ने पूछा कि मेरे को कैसे अपना आंसर राइटिंग इंप्रूव करना है, तो घबराना नहीं है, सब हो जाता है। देखिए, आपकी जो भी आज तैयारी है, आप उससे बेहतर ही होंगे एग्जाम में, ठीक है, उससे बेहतर ही होंगे, और हम मेक श्योर करेंगे कि एटलीस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 50 days वी विल डेफिनेटली इंप्रूव आवर स्किल्स। तो दैट शुड बी आवर अप्रोच, हम बिल्कुल उस पर काम करेंगे, नो नीड टू बॉदर अबाउट दैट, ठीक है। आई होप दैट्स lessens your anxiety, little doubts. Yes, sir. Thank you, sir. Welcome, welcome. ठीक है, आई थिंक दैट शुड बी एनफ, मोस्ट ऑफ द डाउट्स वी हैव टेकन। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी, बिकॉज इट्स, या कशिश, यू वांट टू आस्क? Sir, is there any way we can send our essay to you for evaluation? Like, You can get in touch with the team for that. I think they will let you know. Maybe because time का थोड़ा constraint होता है. Maybe I will think if I can have a writing some program, but it's very difficult because time is very, I'm pressed for time. But still you can get in touch with the team. They will tell you what to do. ठीक है, आप उनसे बात कर लीजिए। ठीक, या और कुछ सवाल है किसी का, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? नॉट जस्ट फॉर द essay बट फॉर द इंटरव्यू, और अदरवाइज इन जनरल प्रिपरेशन का अगर आप कुछ सवाल है आपको, फील फ्री टू आस्क। सर माइसेल्फ शैलेंद्र, हाँ जी सर शैलेंद्र जी। अगर कोई सोशल पॉलिटिकल इश्यू है, हाँ तो जी, उसमें बैलेंस, अगर इंटरव्यू में या फिर ऐसे में एक बैलेंस अप्रोच कैसे बनाना है कि वो टुवर्ड्स पॉलिटिकल भी ना जाए, अगेंस्ट गवर्नमेंट भी ना जाए, तो कोई उसमें ऐसा टॉपिक है, कैसे करना है कि सर मतलब कोई मेरे थॉट टॉपिक, भी उस पे वो ना हो। कोई टॉपिक बताइए, I'll tell them। सर जैसे अभी लेटेस्ट लेह का टॉपिक है सर, प्रोटेस्ट कौन इन सा? लेह, लेह अच्छा। प्रोटेस्ट इन लेह एंड लद्दाख। हम्म, देखो, कभी भी हमें ऐसे टॉपिक्स पे, स्ट्रेटेजिक टॉपिक्स पे अपना इमोशन नहीं लाना है बीच में। एक पर्सपेक्टिव बिल्ड होना चाहिए उसमें, आपने ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि मिस्टर वांगचुक हु हैड बीन लीडिंग द प्रोटेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो ही इज अ नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट एंड क्लाइमेट क्रूसेडर, है ना। तो वो अपनी कैंपेन चला रहे थे, कैसे वो जो क्लाइमेट जस्टिस की बात करते थे, एंड ही इज अ वाइडली रिस्पेक्टेड पर्सन। So, having said that, we must also, although personally I believe that his arrest was obviously uncalled for, that was not something to happen, but you should avoid saying that in the interview. इंटरव्यू में वो अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का आउटराइट क्रिटिसिज्म नहीं करना है, मतलब दैट इज हाउ इट इज, मतलब गवर्नमेंट में जाके आपकी आवाज बंद होती है, ये फैक्ट है। यू कैन नॉट स्पीक व्हेन व्हाइल यू आर सर्विंग, और इवन व्हेन यू आर
wanting to get into the service. तो गवर्नमेंट का आउटराइट क्रिटिसिज्म नहीं करना है, उसको थोड़ा सा बैलेंस करना है कि we should, these strategic experts or whoever the security agencies, they are taking cognizance of the situation that is there, that whether there was any other connections that are being probed. Since the matter is sub judice, you should, avoid, you should, kind of balance your argument like that, that the government is in, agencies are intervening in the matter, the investigation is being done, and whenever, since there has been no official statement from the government as such, whatever is that, whatever the conclusion, so we keep it at that. So उस तरह से आपको उसको थोड़ा सा कंक्लूड कर देना है, मतलब आउटराइट क्रिटिसिज्म भी नहीं करना है, बिकॉज सोनम वांगचुक इज अ वेरी रिस्पेक्टेड फेलो, ठीक है, और एट द सेम टाइम हमने वो भी नहीं करना है कि सरकार को बोल देना सरकार ने बड़ा गलत कर दिया, जेल में डाल दिया, इमोशंस में बड़ा गलत हुआ, वो भी नहीं बोलना है। तो एक तभी है ना, आपके शब्दों का चुनाव बड़ा ही एक संजीदगी से होना चाहिए। मतलब यू शुड, वही कहता हूँ ना, आप ऑफिसर सिलेक्शन हो के बाद ये मत सोचो कि सिलेक्शन के बाद बनते हो, आप अफसर अफी से बन जाओ। आप, आपके बात करने का लहजा, आपका सोचने का तरीका, आपका अपने कलीग से डील करने का जो होता है, अपने फेलो कंपैट्रियट से डील करने का, वो एक शुड रिफ्लेक्ट एन ऑफिसर लाइक क्वालिटी, है ना। वो आप अपने अंदर वो फील ही करना है जनरली। मैं कहता हूँ कि जब इंटरव्यू में जाना है तो इंटरव्यू रूम में ये सोच के मत जाओ, गोइंग विद अ बेगिंग बोल एनीवेयर इज नॉट अ गुड आइडिया। वी मस्ट ऑलवेज गो विद आवर बाउल फुल। अब पॉलिसी और एन अप्रोच ऑफ अबंडेंस, लाइफ में ना अबंडेंस वाली अप्रोच होनी चाहिए कि आई हैव इट। एक एग्जांपल मैं जनरली कोट करता हूँ कि मैंने सुना भी था ये, कि द रिवर्स दे कम फ्रॉम द माउंटेन्स एंड वेयर डू दे लैंड अप। कहाँ जाती है रिवर्स? पहाड़ों से आके अंततः कहाँ मिलती है जाके? हम्म? कहाँ जाती है रिवर्स? इतनी ज्योग्राफी तो आती है आप लोगों को। ओशन से। समुद्र में जाती है, ओशन में जाती है ना, यस सर। ठीक है, दे गो इन द ओशन। ओके, रेगिस्तान में क्यों नहीं जाती? Why don't rivers go into the deserts and why to the oceans? Because in life, or in the law of universe, it doesn't matter what we seek. What we want is not the question. What we are is the question. What we are. That is the question. Not what we want. What we are. If we are if we are full of abundance, we will attract a lot of abundance. Everything will come to you. ठीक है? If we lack something and we go with desperation to want something, कि हमें कुछ हासिल करना है ना, छीनना है या पाना है, वो नहीं मिलेगा। मार्क माय वर्ड्स, वो नहीं मिलेगा। जब तक हम, यार मुझे बनना है, मुझे बनना है, नहीं बनोगे। अगर आप होगे, इफ यू आर दैट, आप बन जाओगे। द थिंग इज ऑलवेज build that process, build those competencies, build those possibilities around you. Things will come gravitating towards you. Everything will come gravitating. You will become that magnet that will attract everything. Same is the case with life, examinations, in your relationships, everything. Never go chasing anything in life. Just be, stand still in your life, build yourself, build your knowledge. आप चाहते हो एक ऑफिसर बनना या लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, डोंट थिंक कि मुझे कुछ अचीव करना है। थिंक अबाउट व्हाट यू नीड टू डू टू अचीव दैट। If we have one eye set on the target and only one eye to walk us through the path, we may stumble on roadblocks. So both eyes on the road path honi chahiye. That vision has to be clear, and no discounting that fact. But we should operate from a position of abundance, position of, that we have it already. ठीक है? तो इंटरव्यू में भी जाते हैं, when the examiner or the panel asks you a question, so you should have confidence. You should have that, कुत्तों की एक कुत्तों के एक वो तरीका होता है, जब एक कुत्तों के इलाके डिवाइडेड होते हैं, जब एक कुत्ता एक दूसरे कुत्तों के इलाके में जाता है, तो ही विल हैव हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स। यू विल नोटिस दैट जब टेल बिटवीन द लेग्स का मतलब है वो थोड़ा डरा हुआ है, घबराया हुआ है, सहमा हुआ है।
ठीक है ना? तो never walk in life with a tail between your legs. Always walk with the head held high, with that confidence. Because if we are, that tail between the legs attitude will not let you achieve your potential. आपका जो potential है, that will also get sabotaged if we actually don't, utilize our, entire, possibilities that are there, isn't it? So that's the point I want to make. That is true for your answer writing. That is true for your essays, for your interviews, for everything else. All right. Yeah, I hope that answers your question. अब सवाल क्या था आपका, मिस्टर शैलेंद्र? आप पूछ रहे थे कुछ, आपका सवाल था आई थिंक, कुछ ऐसे ही कुछ सवाल था। आई थिंक इंटेलेक्चुअल युवा का एक सवाल है, फिर हम रैप अप करेंगे सेशन को। या Sir, प्लीज it is आस्क। regarding interview. Should I mention the NGO thing in my introduction? सी, एक मैं आपको एक बात बोलूंगा, इन सवालों के जवाब आपके पास हैं। दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी, ठीक है? I would want you, we will discuss this some time, after a few days. I want you to introspect on this. I can easily answer this question for you, but I want this answer to come from within you. I want you to sit with yourself, uh, define the trajectory, look back at the trajectory of your life, where that NGO thing fits in, and then you can look to whether you want to mention it or not. So I want you to go a little deeper for this question and for everything else that you all must feel कि सर मुझे हॉबीज में क्या लिखना चाहिए, सर मुझे इसमें क्या करना चाहिए। आई कैन नॉट टेल यू, nobody cannot tell you. You are the master of your destiny. You have to take that control. I don't tutor you, I don't spoon feed you here. I guide you to do what is needed. So what is needed is to look inwards, to build that understanding. Self awareness is very important. So I would advise you, go into that contemplation for some time, over the next few days, and I'm sure next time when we speak, you will answer me yourself. You will answer this question yourself. Okay? Sure, sir. Yeah. Thank you Yeah. so much, sir. Yeah. Welcome. Yeah. Anybody else? So I think it's मेरा भी गला थोड़ा सा हो गया भारी अब इतना लगातार बोल के। अब वाइंड अप करते हैं सेशन को। मुझे लगता है कुछ फायदा हुआ है सेशन का। डिड यू गाइस गेन समथिंग? कुछ डिड यू गाइस बेनिफिट Yes, sir. फ्रॉम? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो कोशिश कीजिए कि जो हमने चीज़ें इनपुट्स डिस्कस की हैं उनको थोड़ा सा आप वो करिए, इंकॉर्पोरेट कीजिए अपनी। देखिए, एग्ज़ाम के लिए तैयारी मत कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, डोंट प्रिपेयर फॉर एनी एग्ज़ाम, प्रिपेयर फॉर लाइफ। दैट्स माई आइडिया। प्रिपेयर फॉर लाइफ, प्रिपेयर योर सेल्फ। इफ़ यू देखो, अगर मैं एक वेल राउंडेड पर्सन बन गया हूँ तो मैं किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अब जरूरी नहीं है कि मैं एग्जाम दे रहा हूं मैं सक्सीड ही हो जाऊंगा एग्जाम में, गारंटी नहीं होती किसी चीज की। ऑलवेज मार्क माई वर्ड्स। थैंक यू, थैंक यू। कोशिश ये करनी है कि मतलब आप बड़ी मेहनत करते हैं लाइफ में, हम अथक, क्या ना, अथक प्रयास करते हैं कई बार, तब भी आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या एक एग्जाम आपकी वर्थ डिफाइन कर देगा? नहीं कर देगा। तो आपने उस एग्जाम को अपना मेन पैरामीटर ऑफ योर लाइफ, ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट, it is very difficult when we know we want to have a job, we want to have a future secure, but that is not how the system works. System works when you detach yourself from the process, from the outcome of the result, outcome of the exam, or for that matter whatever we do, क्योंकि आउटकम कभी गारंटीड होता ही नहीं है। अब कई बार अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हैपन, बहुत कुछ होता है एग्जाम में, बड़ी मेहनत करके नहीं हुआ। विल यू बीट योर सेल्फ अप फॉर दैट? विल यू कर्स योर सेल्फ? नो। बट अगर आपने उस प्रोसेस में आप ईमानदार हो, आपने उस प्रोसेस के दौरान अपना बेस्ट दिया है, आपको लगा कि यार रिजल्ट जो मर्जी रहा, लेकिन मुझे पता है कि मैंने जो करना था वो मैंने किया है, दैट आई हैव डन। नाउ दैट सेटिस्फैक्शन एंड दैट चर्निंग that you have subjected yourself to, that churning will make you more of a man or a woman, that will make you a person that can stand out from the crowd. तो मैं आपको यही कहता हूँ कि एग्जाम जिंदगी में बड़े होते हैं, ठीक है? एग्जाम से अपने आप को, इन एग्जाम से ना ऊपर उठाओ थोड़ा सा। लुक एट द ट्रेजेक्टरी ऑफ योर लाइफ 25 years from now. Do you just want to be just other
aspirant or just other person serving in any department, government or otherwise, or you want to elevate yourself to a greater realm. क्योंकि हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है, हम अपनी कैपेबिलिटीज हमने अपने आप को लिमिट कर रखा है। क्यों? क्योंकि हमारे आगे पीछे का जो सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, जो लोग होते हैं हमारे आगे पीछे, उनके अंदर डाउट्स होते हैं। कई बार हमारे ड्रीम्स डिल्यूजनल होते हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े सपने होते हैं हमारे, लेकिन हम लिमिट कर लेते हैं। तो आपने अपनी कैपेबिलिटीज को अनलिमिटेड बनाना है। फिर आपको लगे ये एग्जाम ये तो बहुत छोटा सा है, मैं तो इसको ऐसे, फिर आपको एग्जाम बहुत छोटा लगेगा। जब तक एग्जाम आपसे बड़ा होगा तो आपको एग्जाम इंटिमिडेट करेगा। एग्जाम आपसे बड़ा नहीं है, आप एग्जाम से बड़े बन जाओ, और वो बिलीव करना है। सबसे बड़ी, मैं जो कैंडिडेट से यूथ से बात करता हूँ, जो सबसे बड़ी सेल्फ बिलीफ की कमी दिखती है। मेहनत करते हैं लेकिन उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो वो चीज इनग्रेन करना आपके अंदर बड़ी जरूरी है। यही मेरा पर्पस भी होता है। जो मैं क्लासेस भी जो मैं लेता हूँ, सिविल सर्विसेज वाली भी और आईबी की भी, तो मेरा वहां पे भी क्लासेस में भी जो बच्चे क्लास वाले भी हैं, दे नो इट दैट द पर्पस इज नॉट जस्ट टू टीच यू, द पर्पस इज टू मेक यू मोर ऑफ अ थिंकिंग इंडिविजुअल, क्रिटिकल रीजनिंग। दैट इज द पर्पस। वंस दैट इज डन, यार पढ़ाई तो बंदा खुद भी कर सकता है। मैं ये भी मानता हूँ, पढ़ाई कराने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। पढ़ाई कोई भी करा देगा, आप खुद भी कर सकते हो। यू आर शार्प इंटेलेक्चुअल पीपल, आप सब अच्छे मेहनत करने वाले बच्चे हो। आपको एक एक दिशा, एक वो चाहिए। आपको अपने अंदर की काबिलियत को पहचानना है, जरूरी है। इफ यू कैन डू दैट, आई एम श्योर, आई मीन वी आर गोइंग टू डू वेल। ठीक है? All right then, I hope let's conclude the session now and try to incorporate this, and let's follow it up in a few days. Those of you who intend to join the program, they can join, but otherwise those who are preparing with their self study, I would advise stick to that and work really hard. Work really hard, because आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। Absolutely, the journey of 1,000 miles starts with a single step. So point is, have you taken that one single step? ठीक है ना? आप वो कदम उठा रहे हो क्या? वो जो आखिरी कदम, एक पहला कदम चाहिए, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ना है तो शुरुआत तो करनी पड़ती है। ठीक है ना? अभी आप इस क्लास में भी आए हो, उठ के तैयार होके बैठे हो, तो कदम तो उठाया है। ठीक है? आपने फॉर्म भरा था, वो एग्जाम का पहला कदम था। या कोई भी चीज करते हो, पहला कदम होता है। मैराथन दौड़ना है, 42 किलोमीटर का फुल मैराथन, तो आप पहले दिन ही 42 तो दौड़ नहीं सकते हो। You will gradually increase the amount of kilometers. You will start with 500 meters, 1 kilometer, 2, 3, 4, 5, 10. तो धीरे धीरे आप बढ़ते हो। तो अपनी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी को अब किसी और की सक्सेस से मत नापो। मे बी when that person was in that stage, even that person may have been in your situation. तो अपनी जर्नी को डिटैच करके देखो। आपकी सक्सेस, आपका फेलियर आपकी डेस्टिनी है, आपका हार्डवर्क है, और आपकी वो आपके ही एफर्ट पे डिपेंड करेगी। What Kashish is doing will not define what Anjali will achieve, or for that matter, the other way around. What Kashish will do will define her growth and her life trajectory. और पढ़ाई वढ़ाई से सबसे ज़्यादा जरूरी क्लैरिटी ऑफ थॉट बड़ा जरूरी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जहाँ पे भी काम कर रहे हो, जो भी आप करो, आपके सवाल बड़े इंटेलिजेंट होने चाहिए। आई वॉन्ट यू टू आस्क वेरी गुड क्वेश्चन इन लाइफ। इंटेलिजेंट, वेल थिंकिंग की, देखो सवाल पूछने वाले से ही आप सामने वाले को आपकी सोच का पता चल जाता है। तो सवाल अपने इतने खतरनाक होने चाहिए, खतरनाक इन द सेंस, कई बार ऐसा नहीं सेक ऑफ द क्वेश्चन मत पूछो। आस्क क्वेश्चंस व्हिच आर गुड क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस दैट आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, एंड दैट विल कम वंस यू अंडरस्टैंड। आई थिंक समबडी आस्क्ड अबाउट कि वो एनजीओ वाला, आई थिंक वो उनको अभी खुद पे इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो सवाल खुद जवाब दे पाएंगे वो। तो ये सवालों के जवाब हमें खुद से ढूंढने हैं। ठीक है? सो लेट्स कॉल इट अ डे एंड मूव ऑनवर्ड्स, step forward, and as they say, look back and you're dead. Never look back in life. Take risks, big risks in life, but never look back. क्योंकि हमारे पीछे सक्सेस और फेलियर दोनों होता है। ठीक है? वी आर मेड ऑफ बोथ सक्सेस एंड फेलियर्स, बट इफ वी don't want to embrace our failures and only have successes, that won't make us. सक्सेस, फेलियर्स आपको रिफाइन करते हैं, सेटबैक्स आपको रिफाइन करते हैं। तो embrace whatever comes. Work as hard that you want to get it, but if you don't get it, be ready to face it as well. वो उसके लिए रिग्रेट के लिए तैयार नहीं रहना है। ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक, आई होप यू प्रिपेयर वेल। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद। गुड लक। Thank you, sir. जय हिंद जय सर। हिंद सर।